Good morning to everyone. I hope students you are all excited. What for you are here? Do you know? I think the creative is indicating what for we are here. Okay, so once again, very good morning to you and all present here. On behalf of IMT College of Management, our MD Mayank Agarwal sir, our director sir, dean sir, HODs and all faculty members, dear students and the guest. We are welcoming you to get this opportunity which is organized by Startup Club of IMT College of Management. You know that the startups, have you heard about the startups? Startup India, Make in India, Skill India, a lot of things you might have heard, right? So a startup is a word which is very, discussed across the nation, even globally, right? And the startup is initiated by entrepreneurs. And you all know that the basic quality of entrepreneur is risk-taking and solving some problem of the society as a whole in a very unique way with a lot of passion and innovation and creativity. So, if you ask yourself, you all have tremendous potential to identify some problems of the society in different sectors. At the same time, you can explore the solutions where not only you are going to solve the problems of the society, also you have a hidden business opportunity. So that is the prime motto of entrepreneurs, to solve the problems as well as exploring the business opportunity to establish a business and grow the business and sustain the business. So with this, among us, there is a very eminent guest, Mr. Sandeep Goyal, sir, who has spared his valuable time from a very busy schedule. He has 20 years of experience across different companies in the banking sector, and you all are highly privileged and fortunate to have such experienced personality here. So it is up to us how you take different ideas and thoughts. And I am once again welcoming Sandeep Goyal sir to come on the stage, and we can facilitate different thoughts and ideas related to MSME. MSME is basically Ministry of MSME deals with micro, small and medium enterprises at central level, state level and local level. It is a facilitating government body which is always taking you to the startup, because without that support you cannot start up so many things. There is a process driven situation where you can explore those things, and whatever idea you have, business idea you have, you can register a company with the process and then you can start up. Okay? So I'm just welcoming Sandeep sir, and let us facilitate him with the token of memento. Please come. So once again, let us have a big round of applause for Sandeep Goyal sir, who is going to
enlighten us with the knowledge of wisdom related to MSME startup. He's going to share his very rich experience. And feel free to ask questions because this session has to be interactive session from starting club. Okay? Thank you. Good morning. Good morning. Thank you. मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर. कुछ क्वेश्चन इंटरैक्टिव रखते हैं सो दैट आई यू कैन एटलीस्ट स्पीक टू ईच अदर स्टैंडिंग ओवर हियर. आप में से कितने लोग, हाउ मेनी अमॉन्ग्स यू वांटेड टू बी अ सीईओ ऑफ द कंपनी? रेज योर हैंड्स. वन, ओनली वन. टू आउट ऑफ दैट. आप में से कितने सीईओ बनना चाहते हैं? हु वांट टू बिकम अ सीईओ ऑफ द कंपनी? There are two people who want to become a CEO of the company. Good. I think you are from a different specification. I'll say, if I can read it through BBA. How many are from BBA? BA JMC. Oh, major. And BCA. What is this BA JMC? I think, is this audible? What is BA JMC? And what is BBA? Bachelor of Business Administration. Fantastic. आप सारे बैचलर्स हो? Yes, sir. सारे बैचलर्स हो? Yes. Nobody is married. चलो फैंटास्टिक. तो मैं इस सेशन में आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया एंड हाउ आई केम टू दिस प्लेस. दो चीज़ों का एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा लगा. इसमें से कुछ लोग सीईओ बनना चाहते हैं, थैंक्स गॉड एटलीस्ट जो दो सीईओ बनने के लिए तैयार, उनके साथ उनके मैनेजर साथ में बैठे हुए हैं. एटलीस्ट दैट इज़ अ गुड थिंग. तो मैंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट की, इट्स ऑलमोस्ट 20 years बिफोर. स्कूलिंग कंप्लीट की इन ईयर 2000 एंड 1997 फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS. उसके बाद देन आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन BCom honors. Then I did my masters. After completing masters, मैं आपको जर्नी से सुना रहा हूँ. It will be very much helpful क्योंकि जो टॉपिक है it's something which is related to small, micro, medium enterprises, how things formed in. मेरी जर्नी कैसी रही, how I started off. It will be very helpful for you to decide upon. ज़बरदस्ती तो कोई नहीं बैठा हुआ ना, ज़बरदस्ती नहीं बुलाया गया ना. How many of your hostlers? 1 2 3 4 5. आज ना के आए हो? चलो गुड. So I started in 2000 after completing then my post graduation. मेरी समर ट्रेनिंग हुई थी अमूल इंडिया आइसक्रीम 2002. It was the first time दिल्ली में अमूल आइसक्रीम ने अपनी आइसक्रीम लॉन्च की थी. ओके, तो सिर्फ गुजरात में होती थी एंड देन द टाइम दे स्टार्टेड समर ट्रेनिंग की. इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे गए. How many of you understand distributor point? हाँ, अरे कोई बात नहीं यार. डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट क्या होता है? सर जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मतलब अलग अलग हर सेक्टर में, और जो जैसे प्रोडक्ट को अलग अलग सेक्टर्स में या फिर जहाँ हमें पहुँचाना वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं. जैसे कि होलसेल बोल सकते हैं, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर मतलब अपना सामान लेने आते हैं और वो प्रॉपर सर्विस होता है पूरे मार्केट में. वेरी गुड, फैंटास्टिक. तो आप दोनों सही है. एक होलसेलर, एक डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देयर हैज टू बी अ पर्सन. तो कंपनी मैन्युफैक्चर इट, गिव टू अ थर्ड पार्टी, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है. तो अमूल इंडिया आइसक्रीम के डिस्ट्रीब्यूटर एक ईस्ट दिल्ली में होते थे. लाला जी, मेरी उम्र उस समय 20 साल, उनकी उम्र 60 साल. तो समझ का फासला बहुत. उनके हिसाब से आई वॉज एम्प्लॉय फॉर अमूल इंडिया. पहुँच गए. उनके ऐसा 20 साल का लड़का क्या करेगा, मुझे काम सिखाएगा. मैं तो खुद ही काम सीखने गया था उनसे. तो दैट वाज द थिंग. अमूल आइसक्रीम क्या, धूप की तड़पती गर्मी, इंटर्नशिप करनी है तो ऐसे ही करना होता है ना. मई जून में करना पड़ता है. कॉलेज वाले छुट्टी भी तभी देते हैं, उसके बाद ध्यान में देते ही नहीं छुट्टी इंटर्नशिप करने के लिए. ऐसे ही होता है. तो वहाँ पे दी छुट्टी, वहाँ पे गए. अमूल इंडिया आइसक्रीम फैंटास्टिक, बड़ा अच्छा जर्नी थी. इट वॉज फैंटास्टिक. डेली मॉर्निंग में सुबह 9 बजे पहुँच जाते थे. डिस्ट्रीब्यूटर साहब भी आते थे, हम भी पहुँच जाते थे. अमूल इंडिया आइसक्रीम का ब्रांड था. कॉलेज से चल ही रहा था कॉलेज, तो लगा ठीक है दिस इज समथिंग विच इज़ राइटली आई एम अंडरस्टूड. सही जगह पहुँच गए. तो ऑलमोस्ट 3 महीने में आई एडेड अप ऑलमोस्ट साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट. जब अमूल आइसक्रीम इंडिया में दिल्ली में लेके आए, तो आइसक्रीम रखने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है? फ्रिज. तो उन्होंने बोला कि जितने भी रिटेलर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि उनके यहाँ फ्रिज प्लेस करेंगे, तभी सामान तो वहाँ बिकना चालू होगा. तो
ऑलमोस्ट 40-50 डिग्री 40-45 डिग्री तो दिल्ली में टेम्परेचर आ ही जाता है। रोज़ सुबह किसी नए रिटेलर के पास जाना, समझाना एंड उनके यहाँ आइसक्रीम प्लेस कराना। अमूल का बटर तो जनरली सबके यहाँ होता था, आइसक्रीम और समथिंग न्यू, बिकेगा नहीं बिकेगा, रिप्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, इट वाज सम बेसिकली ग्राउंड लेवल इश्यूज विच पीपल यूज टू अंडरस्टैंड। किसी तरह से 27 रिटेलर्स ऐड किए 3 महीने में, बड़ा अच्छा लगा, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस समझे, इट वाज अ फैंटास्टिक। उसके बाद देन आई वेंट टू अ डिफरेंट, कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुई। देयर वाज अ डिफरेंट ब्रांड जहाँ पे अगेन एक इंटर्नशिप की, लेकिन वो इंटर्नशिप ठंडी में की, जनवरी टू मार्च। दैट वाज स्कॉच ब्राइट, 3M इंडिया लिमिटेड। हाउ मेनी ऑफ यू नो 3M इंडिया? 3M इंडिया का नाम सुना है? सुना है, सबने देखा है 3M इंडिया पक्का? मुझसे याद नहीं होगा। कोशिश करो। येलो कलर पोस्टेट्स, स्टिकॉन्स, नहीं स्टिकॉन्स यूज किया है? येलो कलर का पोस्टेट स्टिकॉन्स देखा है? पोस्टेट स्टिकॉन स्लिप्स लगे रहते हैं ना दीवालों पे, आप लगाते हो, पर्चियाँ, चिट, अलग कलर फ्लैग्स, स्टिकी नोट्स। दैट वाज द कंपनी जिसने स्टार्ट किया 3M ने। अब आपको शायद ध्यान आ रहा होगा, आपने सेंचुरी का खरीदा होगा। 3M वाज द कंपनी विच हैज स्टार्टेड। 3M इज अ अमेरिकन कंपनी और वो अपना स्पेशलाइजेशन करती है इनोवेशन में। इनोवेशन समझ में आता है? इनोवेशन में स्पेशलाइज करती है। आप लोग कितने लोग फ्लाइट में बैठे हो? 1 2 3 4 5। कभी कोई मूवी देखी जिसमें फ्लाइट का ऊपर वाला पोर्शन उड़ गया? नहीं देखा। एक मूवी जिसमें फ्लाइट का ऊपर वाला पोर्शन उड़ गया था। तो जो भी फ्लाइट होती है उसमें 2 पोर्शन होता है और वैसे पोर्शन चिपकाया जाता है। फ्लाइट का मुंह आगे से ऐसे उठा होता है ना, तो ऐसे उसको जोड़ा जाता है। तो उसमें यूज़ करने के लिए एडहेसिव यूज़ होता है। उस एडहेसिव को बनाता है 3M। इट्स एन अमेरिकन कंपनी। उसका स्पेसिफिकेशन वो एडहेसिव, वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालता है। तो पोस्टेट एक इनोवेटिव प्रोडक्ट था। आप चिप्स लगाते हो तो पहले चिट्स पेपर के होते थे, तो उनका इनोवेशन था वो ग्लू स्टिक से चिपकना स्टार्ट हो गई। तो दे आर बेसिकली स्पेशलाइज इन एडहेसिव। तो उन्होंने 3M निकाला। तो उनका एक प्रोडक्ट आता है स्कॉच ब्राइट, सुना है? जूना। तो जूने का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, 3 महीने वहाँ पे काम सीखा। अब जूना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जूना इजी, वहाँ बर्तन मांजना स्टार्ट किया। रिटेलर्स क्या जा रहे हैं, उसको प्लेस करो। बोले ये क्या लेके आ गए हो? सब लोग मोजे से साफ करते हैं, ऐसे होता है ना, कपड़े साफ कर दिए, क्या ले आओ। दैट वाज इन ईयर 2002। तो डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, वहाँ पे दुकान गए। अब दुकानदार के बोले सर घर के अंदर से कढ़ाई ले आओ, आपका जो बर्तन है जिसमें सामान तोलते हैं वो ले आओ, उनको रगड़ के दिखाया दो कितना अच्छा चमक आ जाती है, देखो आप रखो इसको। ठीक है जी। ग्रीन कलर का आता है स्कॉच ब्राइट, देखा है ना? तो ग्रीन कलर का आता है, ब्राउन कलर का आता है, देखा है ब्राउन कलर वाला? दिस इज फॉर जिसके स्टील के जूने आते हैं, है ना? तो वो रखना स्टार्ट करवाया उसने। किसी दिन उसको मनवाया, सर ये रखो। बोले कहाँ ये रखना चालू करें, क्या ले आए, फिरंगी सामान यहाँ नहीं चलेगा हमारा। फिर वो मॉपर, बोले ये क्या लेके आ गए हो, ये नहीं चलेगा हमारे यहाँ, हमारे तो लोग कपड़ों से ही पहुँचते, बनियाइन फाड़ी पोछा चालू, ऐसे ही होता है ना, ये नहीं चलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो समझाया, किसी तरह से प्लेस किया। तो 3 महीने की जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग। मैं नोएडा रहता था, मोती नगर जाता था, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट वहाँ था। मेट्रो उन दिनों बनना स्टार्ट हुई थी दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में मेट्रो बनना स्टार्ट हुई थी। मतलब इतनी सड़कें खुदी हुई। अभी तो मेट्रो का फिर भी ईजी, आप लोग तक पहुँचो, मेट्रो बन चुकी है। तो वहाँ गड्ढों से आना, सुबह 7:30 घर से निकलना, ठंडी जनवरी फरवरी मार्च 7:30 घर से निकलना और डेढ़ घंटा में पहुँचना। मेट्रो का इतना रास्ते बंद और 9 o'clock डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में पहुँचना। नहीं पहुँचे तो बॉस का फ़ोन आता, वही लैंडलाइन से करना पड़ता था। ये भी नहीं कह सकते पहुँचने वाले हैं। वहाँ पहुँचे डिस्ट्रीब्यूटर, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक बंदा, और वहाँ मार्केट चले जाते हैं। ट्रेनिंग मिली, सबसे इंटरेस्टिंग बात, ट्रेनिंग मिली 5 स्टार होटल में, 10 days का स्टे। मैंने कहा बढ़िया कंपनी में लगे हैं तो इंटर्नशिप में पैसे अच्छे मिलेंगे, 5 स्टार का स्टे, दामाद की तरह रख रहे हैं। पूरी ट्रेनिंग दे दी। और जब हम मार्केट में उतरे, मैंने कहा ये क्या, एक बंदे के साथ जाना, जूना घिस के लोगों को बताना। लेकिन वो इंटरेस्टिंग जर्नी थी। डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। अब डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया तो लगा कि अब डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, हम तो एक्सपर्ट बन जाते हैं। ऐसे होता है ना, शुरू तो एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो तभी मैंने कहा CEO। तो मैं पहले जब ग्रेजुएशन करने निकले तो लगा कि बेसिकली मैं बनिया मारवाड़ी हूँ, तो बनिया मारवाड़ी के अंदर खून ही होता है, बिजनेस करना है। अब क्या है कि मेरी फैमिली में मेरे फादर, ही वॉज फ्रॉम IIT BHU। उन्होंने IIT BHU से पढ़ाई की। दादाजी का अच्छा फला फूला बिजनेस, लेकिन का पढ़ाई कर लो। तो दोनों पापा और दादा चाचा जी चले गए IIT BHU।
एक ने ज्वाइन कर लिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक ने ज्वाइन कर लिया ONGC। दादाजी का बिजनेस ठप। अब आए कहाँ, 2 बेटे। फिर पापा आ गए NTPC में और चाचा जी ONGC चलते रहे। अच्छा खासा पेट्रोल पम्प, केरोसिन मिल्स, अगर आपको पता सीमेंट की एजेंसी होती थी पहले सब। तो अब चल रहे थे बिजनेस। हम भी जॉब में आने के सोचे। अब सोचे भाई जॉब में आना है, डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया है, अब कौन सी कंपनी ज्वाइन करें। मैंने कहा सबसे अच्छी चीज़ बिकती है क्या, खाने वाली। तो खाने वाली कंपनी में इंटरव्यू देने गए। तो एक इंटरव्यू देने गए ITC, सिगरेट की कंपनी। इंटरव्यू देने बैठे, एक मैम बैठी हुई थी, एक सर बैठे हुए थे। तो डू यू स्मोक? मैंने कहा नहीं। तो बोले कहाँ से बेचोगे सिगरेट? मैंने कहा उससे क्या मतलब होता है, डू यू स्मोक? मैंने कहा अब नए नए जवानी का जोश, मेरे को डर तो लगता है ना किसी से। मैंने कहा मैम आप भी पीते हो? HR मैडम से पूछ लिया, वैसे घूरने लगे मेरे को, आप भी पीते हो, व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैंने कहा मैम आपने तो बोला आप भी तो इस कंपनी में काम करते हो ना। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। मैंने कहा हो गई छुट्टी, यहाँ तो कुछ होना नहीं। मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाया, चला। अगला इंटरव्यू देने गए। अगला इंटरव्यू मिला नेस्ले में, CP में ऑफिस। मैंने कहा बढ़िया मैगी खाने को मिलेगी। नेस्ले में इंटरव्यू दे के आए। अंग्रेजी में दे आस्क्ड मी सो मेनी क्वेश्चंस बट आई नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग, ये वो, फिलिप्स कॉटलर और फला। दे आस्क्ड मी एवरी बैड थिंग विच आई वाज नॉट अवेयर ऑफ। पढ़ाई तो करते नहीं थे ना, स्कूल में ऐसी मस्ती चल रही होती थी, क्या करना है पढ़ाई करने का, पिताजी काम कर रहे हैं, पैसे आ ही जाएंगे। तो दैट वाज द टाइम उन्होंने पूछना स्टार्ट किया। मैंने कहा नेस्ले का इंटरव्यू दिमाग से मैगी घूम रही थी उस समय अकेडमी। तो चलो इंटरव्यू दे के आ गए। मैंने कहा अब क्या करें, फिर एक और इंटरव्यू दिया। अब तीसरा इंटरव्यू दिया फ्रीटोले। हाउ मेनी ऑफ यू नो फ्रीटोले? फ्रीटोले नहीं जानते? पक्का 100%? फ्रीटोले पक्का? लेस, कुरकुरे, अंकल चिप्स, क्या बात कर रहे हो यार, ये तो सुबह का खाना यही है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मेरा तो वही होता था। आपका भी तो फ्रीटोले इज अ ब्रांड ऑफ पेप्सी को, जो कि फूड डिवीजन में। तो दैट वाज द कंपनी। सिलेक्शन हो गया फ्रीटोले में, थैंक गॉड। मैं चला गया इंटर्नशिप के लिए, सॉरी जॉब मिल गई, सैलरी पैकेज डिसाइड। चिप्स की कंपनी है, कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, डेली खाने पीने को फ्री में मिलेगा अब तो। फर्स्ट असाइनमेंट मिला, 1 वीक आई हैव टू गो टू हिसार गए। हिसार में वहाँ फिर डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने कहा लो, फिर वही डिस्ट्रीब्यूटर अंकल जी, दादाजी की एज के 20 साल 60 साल की उम्र और 22-23 साल की उम्र। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में क्या होता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्राइज का डिस्कशन कर रहे हैं ना, आइडिया इज टू टेल हाउ कैसे बिजनेस ग्रो करता है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर 50-60 के नीचे कोई होते नहीं, और उनका बिजनेस जब भी कोई सेटअप करता है, बिजनेस गोज इन सैट सेंस कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप रिटेल आउटलेट से फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट करता है, तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन या बिजनेस विच इज़ अ कोर बिजनेस, आपके घर में कोई भी सामान आता है, सुबह का ब्रेड, अंडे, दही, सब्जी, राशन, एनीथिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कम्स थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो कंपनीज को प्रोड्यूस करती है। अच्छा, 22-23 साल की उम्र, 60 साल के अंकल, कंपनी का टारगेट सिर्फ एक, आज ऑर्डर लगना चाहिए। ऑर्डर लगना चाहिए, कौन लेगा? फ्रीटोले तो हर कोई खरीदेगा। प्रॉब्लम क्या है, अब जब ऑर्डर लो, बॉस का फोन आए, अभी तो समर ट्रेनिंग चल रही है, तो मेरे साथ जो कलीग था, सेल्स ऑफिसर कहते हैं उसका, वहाँ पे हिसार में वो पोस्टिंग, और बॉस डेली फोन करे, आज ऑर्डर कितना लगेगा? ऑर्डर कितना लगेगा? मैंने ऑर्डर क्या करता, अपने भी देता है वो डिस्ट्रीब्यूटर, या तो माल इतना बिक रहा है। तो दैट वाज द टाइम आई वाज थिंकिंग इट इज ईजी टू सेल एवरीथिंग, बट it was becoming difficult because every day distributor has to order 5 to 6 लाख रुपीस बिलिंग करानी पड़ती थी। कोई भी सामान डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे कंपनी तक पहुंचता है, व्हेन यू हैव टू पे एन एडवांस पेमेंट। तो बड़ा मुश्किल है 22-23 साल के बच्चे को, किसी और को 60 साल के अंकल को कन्विंस करना कि आपने सामान लेना है। वो कहते हैं ना, सामान तो लेना नहीं, एक दिन का सामान रखो। तो अगर आपने स्टॉक टेकिंग समझ में आती है, स्टॉक टेकिंग समझ में आती है, गोडाउन में सामान होता है, जैसे आपके घर पे भी होता होगा ना, आप लोग अपने हॉस्टल में रहते हो, घर पे रहते होगे, 2 बिस्किट के पैकेट, 4 बिस्किट के पैकेट, 10 किलो आटा, ऐसे ही होता होगा ना। तो उस समय उतना सामान कितना रखना है, कंपनी जैसे आप घर पे डिसाइड करते हो, उसे डिस्ट्रीब्यूटर को डिसाइड करना है कितनी सेल, उसके बेसिस पे उसने सामान रखना। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि मैं रखूँगा 2 दिन का सामान, आप सामान गाड़ी से भेज देना। अब कंपनी कहती नहीं 7 दिन का रखो, रीजन बिंग देयर इज अ कॉस्टिंग इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। बस बिजनेस अगर ग्रो करना है तो आपको एटलीस्ट कुछ स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे रखना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में 3 चीज़ें होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना है ये चीज़, इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू एनीथिंग दैट यू गो, वेदर आप जॉब करो या बिजनेस करोगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सुना होगा।
प्राइमरी क्या हुआ? करेक्ट। तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया और डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को बिलिंग करती है उसको कहते हैं प्राइमरी। डिस्ट्रीब्यूटर जो रिटेल को बिलिंग करता है सेकेंडरी, और जो ऑफ टेक होता है, ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप और हम कंज्यूम करते हैं, वो होता है टर्शरी। तो जिस सामान का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कंजम्पशन होगा तो उसकी सेल होगी, और फिटोलेक की तो सेल ठीक ठाक ही होगी। ठीक है जी, हफ्ता भर चल रहा था, काम अच्छा चल रहा था, सीख रहे थे, 4 दिन हुआ था अच्छे खासे होटल में अगेंस्ट एक कंपनी में, पेप्सी को कंपनी हिसार में। 4 दिन बाद फ़ोन आया, संदीप गोयल। मैंने कहा ये वी आर कॉलिंग फ्रॉम ITC। मैंने कहा अब क्या हो गया? अच्छा खासी नौकरी चल रही है, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। और पैकेज जो मिल रहा था, जितना पैकेज उस समय ऑफर किया था उससे 20% मोर। मैंने कहा जाएँ ना जाएँ, सिगरेट की कंपनी होएगा नहीं होएगा, और यहाँ पे शाही ठाट 5 स्टार होटल में स्टे, और काम चल रहा है बढ़िया, ट्रेनिंग चल रही है। तो मैंने कहा नहीं, आई थिंक आई नीड 1 वीक्स टाइम टू अंडरस्टैंड, तो नहीं आ पाएंगे। ठीक है जी। 7वें दिन नेस्ले का फ़ोन, मतलब किस्मत देखो कैसे चमक रही थी, एक के बाद एक फ़ोन आना स्टार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है तो कैसे करना है, तो बट कंसिस्टेंसी, आई एम ट्राइंग टू टेल, ये कुछ एग्जाम्पल स्टोरीज आपको इसलिए बता रहा हूँ। कोई भी काम स्टार्ट करो, टेस्ट रन, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आई सेड कि ठीक है पैकेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं, तीनों बराबर ब्रांड्स हैं, 2 मल्टीनेशनल था, नेस्ले एंड पेप्सिको, ITC एंड इंडियन ब्रांड, लेकिन सामान सबका बिकता है, तो लेट मी स्टे। आप लोगों को डिस्कशन में कहीं डिस्कनेक्ट हो, प्लीज़ स्टॉप मी देयर, क्योंकि मैं यहाँ पे लेक्चर देने नहीं आया हूँ, मैं क्लास लेने नहीं आया हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ, जिस चीज़ को आप लोग अंडरस्टैंड करके आपकी लाइफ में हेल्पफुल हो सकता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग विच आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। डिस्कशन कर रहे हैं ना, इट्स नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट लाइक अ एल्डर ब्रदर टू यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम समझ में, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हिच आई एम जस्ट ट्राइंग टू से। तो वहाँ पे काम किया, हिसार में 1 हफ्ता ट्रेनिंग हुई, तो अच्छी नई जगह देखी थी, फर्स्ट टाइम घर से अकेले निकले थे। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन, सोचो वापस नोएडा आ जाएं, घर पे आराम से रहेंगे, अपना काम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ का जो डिस्ट्रीब्यूटर था, कंपनी के एम्प्लॉय को कुछ समझता ही नहीं था, उसका टर्नओवर 100 करोड़, पेप्सिको का 100 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन करता था वो। मीन्स पर मंथ कितना हुआ? 10 अरे कोई नहीं, 100 करोड़ साल का, महीने का कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? महीने का कितना हुआ? 100 करोड़ साल का, तो महीने का कितना हुआ? 8 करोड़। 8 करोड़ अगर 30 दिन का सेल, तो एक दिन की सेल कितनी हुई? 100 करोड़ साल की, एक महीने के आपने कहा 8 करोड़ की सेल, तो एक दिन की सेल कितनी हुई? 20-25 करेक्ट, फैंटास्टिक। 25 to 30 लाख, 25 to 30 लाख का डिस्ट्रीब्यूटर पर डे का सेल, उतनी चिप्स की वो कर रहा हो, तो वैसे ही बड़ा आदमी सुनने वाला, तो वैसे ही तैयार नहीं कंपनी, और कंपनी के सारे टॉप ऑफिशियल्स को जानता, डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर, क्योंकि इतने सालों से एसोसिएटेड, तो उसके यहाँ भेजा गया। ही यूज टू रन एटलीस्ट, देखो व्हीकल समझना, FMCG डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेल्स मैन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए और व्हीकल्स चाहिए, तो उसकी 100 व्हीकल्स यूज टू रन एवरी डे इन द चंडीगढ़ मार्केट। पेप्सिको का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक व्हीकल के अंदर कम से कम 25 लाख की सेल करता था, 140,000 का सामान, और मल्टीपल टाइम्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट में जाता था, एटलीस्ट 2 चक्कर लगाती थी वो गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। 100 गाड़ियाँ थी, 25 लाख की सेल पर डे की, करेक्ट। तो ऑलमोस्ट दैट इज़ द वे डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे सीखा। मैंने कहा एक डिस्ट्रीब्यूटर, एंड इनफैक्ट मैंने फिर उनसे समझा कि, बोला कि आज से 22 साल पहले मैं किसी का सेल्समैन था और मेरी सैलरी तो उसकी 7,000 रुपये महीना। फ्रॉम देयर ही बिकम ग्रोथ लेवल, एक कंपनी से दूसरी, फिर उसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टार्ट किया। उसकी उस समय ऑलमोस्ट 100 करोड़ की सेल थी चंडीगढ़ में। 1 हफ्ता वहाँ ट्रेनिंग ली, फिर सोचे नोएडा जाएंगे, फिर नहीं, नेक्स्ट टाइम मोहाली, चंडीगढ़ के बगल में, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। तो आइडिया था, सिंस मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का 2 जगह काम सीखा हुआ था, पेप्सी को ज्वाइन करने का बेसिक मोटिव यही था, क्योंकि अमूल आइसक्रीम और 3M में जब डिस्ट्रीब्यूशन का काम सीखा तो लगा ये इंटरेस्टिंग काम है। ठीक है जी। अब क्या है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन के काम में कोई छुट्टी नहीं होती, नो दिवाली, नो दशहरा, नो होली, सब दिन वर्किंग। जैसे कॉलेज भी ऐसे होता है ना, नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही होता है, छुट्टी होती है। तो वहाँ कोई छुट्टी नहीं होती डिस्ट्रीब्यूशन के, क्योंकि देखो आप
बिना चिप्स के आप नहीं रह सकते, जब आप नहीं रह सकते तो हमारी छुट्टी कहाँ से हो? दिवाली के दिन भी जा रहे हैं, सब कुछ डेली जाना, तो अभी क्या करना? अब उसके बाद समझ में आया कि उन दिनों ना बैंकिंग इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ग्रो करी। दिस वाज द टाइम 2003, 4, 5 इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ था 94 में, जब ICICI और HDFC बैंक फर्स्ट टाइम आए थे, जो प्राइवेट सेक्टर में आए थे, और इंडसइंड, कोटक। तो आइडली जितने भी बैंक्स थे उनका एक्सपेंशन चल रहा था, और उस एक्सपेंशन के लिए कोई भी कस्टमर या कोई भी बिजनेस को क्या चाहिए? किसी बिजनेस को क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में उस चीज़ को ग्रो करने के लिए बैंक के लिए दे वांटेड समबडी हु कैन ग्रो द बैंक बिजनेस। अब बैंक का बिजनेस कैसे ग्रो हो सकता है? क्लाइंट से ग्रो हो सकता है। तो देयर वाज अ वर्क विच इज कॉल्ड अकाउंट ओपनिंग। सुना है? तो अकाउंट ओपन होगा तो कस्टमर आएंगे तो लोग ऐड होंगे। तो दैट इज़ द टाइम जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई, और मुझे लगा हाँ ये नौकरी डेली सुबह एक आना, 7:30 उठ के आना, ब्लू कॉलर जॉब करेंगे, आराम से बैठेंगे, सूट वूट पहन के जाए चलेंगे, बैंक की नौकरी चालू करते हैं। बॉस को बोला नमस्ते, सर आई एम जस्ट ट्राइंग टू ज्वाइन अ ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग इंडस्ट्री, मैनेजर की नौकरी लगता था, ऐसा लगता है, ऐसे ही होता है ना बैंकिंग इंडस्ट्री। तो आई सेड थैंक यू, क्विट्स टू FMCG, हो गया, सीख लिया, नाउ लेट्स स्टार्ट द बैंकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि दैट इज़ यूज टू कॉल अ ब्लू कॉलर जॉब। अब वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल करते थे 3, साउथ दिल्ली वॉज द एरिया, पेप्सिको में जो था, यहाँ पे मिला बैंक, HDFC बैंक, जहाँ पे ज्वाइन किया। HDFC बैंक में आई यूज टू हैंडल अ टीम ऑफ 250 पीपल, ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, उस समय 32 ब्रांचेस होती थी, हर ब्रांच में दे यूज टू अ टीम ऑफ 4 to 5 एग्जीक्यूटिव्स, टीम लीडर, सेल्स मैनेजर। तो ऑलमोस्ट बड़ा मज़ा आता था। अगर आपको याद हो, आप तो उस समय आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड हैव आई थिंक बॉर्न एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बड़ा क्रेज़ होता था डेबिट कार्ड का, बहुत क्रेज़ होता था। आज है? अभी है? अच्छा, डेबिट कार्ड का बड़ा क्रेज़ था। अब तो UPI आ गया है, तो डेबिट कार्ड का बहुत क्रेज़ था। लोग अकाउंट खुलवाते थे डेबिट कार्ड की वजह से, क्योंकि सिर्फ चेकबुक इशू होती थी और बैंक से पैसा निकलता हो जाता, डेबिट कार्ड का बहुत क्रेज़ होता था। तो बैंक में गए, बड़ा मज़ा आना स्टार्ट हो गया, नंबर्स होना स्टार्ट हो गए। सेल्स के जॉब में नंबर्स होते हैं तो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये बिजनेस लाइन में आपको क्यों बता रहा हूँ, किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट होने के पहले ज़मींदार होते थे। ज़मींदार लोगों को देनदार और लेनदार होते, तो जितने बनिए होते थे वो पैसे बांटते थे लोगों को। ऐसे ही होता था ना, किसी को पैसा चाहिए गांव में तो बनिए पैसे बांटते हैं। तो वो फॉर्मेट चेंज हुआ, बनिए से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हुआ, स्मॉल, तो शायद थोड़ा सा जो बैंक्स आना स्टार्ट हुए, माइक्रो फाइनेंस बैंक, लार्ज बैंक, ये सब स्टार्ट हुए। तो HDFC बैंक में जॉब स्टार्ट कर दिया, टीम साइज़ बढ़ती गई 250 से टीम साइज़ एक बार किसी ज़माने में 2500 की टीम साइज़ हो गई, 2500। अब वाई एम टेलिंग दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, बिकॉज आप भी कहीं ना कुछ स्टार्ट करोगे, वेदर यू इनटू अ जर्नलिज्म, वेदर यू आर इनटू BBA, तो आप कुछ ना कुछ जॉब करना है, नहीं करना, करना है, नहीं करना, एक्सपीरियंस नहीं करना, तो क्या करना है? शादी, खुद का बिजनेस करना। मेरे को शादी करने से मैंने स्कूल में बड़ा, कॉलेज में बड़ा फेमस हुआ करता था। कॉलेज में भाई पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद जॉब लगे, क्या बिजनेस करेंगे। एक बड़ा फेमस था, मतलब नो ऑफेंस टू एनीबडी, किसी भी फीमेल की शादी फिक्सअप हुई वहाँ MBA करते हुए, मैंने कहा हो गई इसकी तो फॉरेन प्लेसमेंट। फॉरेन में अगर शादी हुई, द हस्बैंड इज फ्रॉम दैट साइड, तो हो गई। तो आउट ऑफ द लॉट, आप लोग जितने लोग बैठे हुए हो, इसमें से बिजनेस कितना करना चाहते हो? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो टू बिजनेस? पापा का बिजनेस है, कोई बात नहीं, तो अमीर आदमी है तो वही कर, तो सेट। जॉब, एक्सपीरियंस लेना। इधर वाले कुछ नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते क्या? अच्छा, जॉब करना चाहते हो। तो आपके फील्ड में क्या होता है वर्क? Ground reporting, content writing and admin. बड़ा तो इसका बिजनेस भी हो सकता है, इसका जॉब भी हो सकता है। हाँ, अगर खुद का चैनल अगर स्टार्ट करना चाहे तो बिजनेस भी हो सकता है। तो कंटेंट राइटिंग या फिर डिजाइनिंग के लिए चैनल जरूरी है? नहीं, ये तो जॉब के रिगार्डिंग हो गया ना। अच्छा, अब मैंने इसलिए आपसे पूछा
इंडियन मार्केट पोस्ट 2014 जब से मिस्टर मोदी एरा आया है, डू यू नो थिंग्स हैव रियली चेंज्ड। चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। होता क्या था कि हम लोग जब कॉलेज में आते हैं ना, तो एक थॉट प्रोसेस होता है कि पढ़ाई करेंगे, पेरेंट्स से पैसे लेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, एस्पिरेशंस होती हैं कि बड़ी गाड़ी होगी, अच्छा मोबाइल होगा, बड़ा घर होगा। होता नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। तो जनरली दैट इज़। और होता है कि जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, हम CEO होते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, फोर्थ ईयर में होते हैं मैनेजर की नौकरी। ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है ना, है ना। तो आइडली लेकिन मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इंडिया में ना देयर इज़ नो स्केर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जस्ट टू टेल यू, स्टैंडिंग ओवर हियर, इफ एनीबडी अमॉन्ग्स यू आर इंटरेस्टेड, आई कैन प्लेस 100 पीपल इन वन ऑलमोस्ट इन 10 days। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ही नहीं है, जॉब की प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, आपका विल होना चाहिए, आपका स्किल होना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, HDFC बैंक, वहाँ पे नॉलेज दिया। तो आई वर्क फॉर HDFC फॉर गुड 5.5 years। HDFC बैंक में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो 2500 की पूरी टीम होती थी। तो आप मानो मैंने 5.5 साल में कितने क्लाइंट से मिला हूँगा, कितने कस्टमर से मिला हूँगा? एनी गेस? क्लाइंट से मिला हूँगा। वेरी गुड। 5 to 7,000 क्लाइंट से मिला हूँगा। 7 करोड़। कौन बनेगा करोड़पति? कितने लोगों से मिला हूँगा? 50,000 क्लाइंट। फैंटास्टिक। और कोई गेस? मोर देन 1 लाख। फैंटास्टिक। आई मेट ओनली 2 क्लाइंट्स। मैंने कहा यार बैंकिंग इंडस्ट्री में आए हैं। रीज़न क्या था, मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी टीम थी, वो क्लाइंट यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता था, तो मैं क्लाइंट से मिल ही नहीं पाता था। तो मैंने कहा नो, लेट्स गिव अस ब्रेक टू दिस। तो मैंने उस समय एक्विजिशन, कंपनी ने लिया था एक्विजिशन, क्योंकि मैंने कहा जैसे रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्विजिशन के लिए लिया। मैंने 2010 में बोला थैंक यू, लेट मी मेक माई हैंड्स डर्टी। अब हैंड्स डर्टी कैसे? बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप आओ तो एटलीस्ट क्लाइंट से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि कैसे, मतलब यू आर हैंडलिंग मनी। सबसे फास्ट मूविंग आइटम है FMCG, इज द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और उससे पैसा, उससे तेज क्या भागता है? पैसा। तो मैंने कहा पैसा ही जब तक नहीं टच करके फील लिया। अब क्या होता है, घर वालों से पूछो, पड़ोसी बोल आप बैंक में हो? हाँ जी, नया नोट ला देना। अरे नया नोट ला देना, सबको ही समझ में आता है। बैंक मतलब नया नोट ला देना, कैश जमा कर देना, DD बनवा देना। अरे उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो पड़ोसी यही कहते थे, नया नोट ला देना, कैश जमा कर देना। आप तो मतलब बैंक में जो बंदा जॉब करता है ना, वो टेलर से लेके मैनेजर तक होता है, आपके पड़ोसी के लिए, जानने वालों के लिए। तो मैंने अपना लाइन चेंज किया। तो मैंने अपना लाइन चेंज किया फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ न्यू अकाउंट ओपनिंग्स से आई केम इनटू वेल्थ मैनेजमेंट। कितने लोग समझ में आता है वेल्थ मैनेजमेंट? लाइक जो मनी को कंट्रोल करते रहते हैं, उसको मैनेजमेंट करते हैं। वेरी गुड। ऑपरेट करता है सर, मनी ऑपरेट करता है उसके। मनी ऑपरेट करता है, वेरी गुड। व्हाट एल्स? मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कहाँ पर इन्वेस्ट करना है हमें पैसे को, और कैसे अपने पास। वेरी गुड, फैंटास्टिक। आप में से कितने लोगों का बैकग्राउंड बिजनेस का है? बाकी सबके पेरेंट्स जॉब में हैं या कुछ और जॉब में? तो व्हाई डिड आई आस्क यू कि वाइल आई फील, कितने लोग पेरेंट्स का बिजनेस ज्वाइन करेंगे? 50%। आप करोगे? किस चीज़ का बिजनेस है? कश्मीर में ही? ओके। तो आप में से कितने लोग नॉर्थ से हो? मैं आपके फादर का बिजनेस क्या है? सर क्लोथिंग का है, फैशन क्लोथिंग। कितने लोग नॉर्थ से हो? नॉर्थ। कितने लोग दिल्ली NCR से हो? दिल्ली NCR। कितने लोग ईस्ट से हो? ईस्ट इंडिया। कहाँ से? उत्तर सेंट्रल से हो? यूपी से कितने लोग हो? यूपी कौन से लोकेशन? आगरा, हमीरपुर, अयोध्या, बनारस, बुलंदशहर, अयोध्या, 2 लोग अयोध्या, लखनऊ, मुरादाबाद। उत्तराखंड। वो उत्तराखंड से, आप? अच्छा, दिल्ली से।
अच्छा, और बिहार कहाँ से? गया। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती यार, मैंने जनरली देखा, डोंट टेक इट ऑन एज ऑफेंस, कोई बिहार साइड का होता है ना, कहाँ से बिहार से पूरा खरीद लिया हो, यूपी से कोई होता है तो बता देता है लोकेशन, ये ऐसा क्यों होता है? मैंने कई बार नोटिस किया है ना, ऐसा होता है ना। तो आइडली मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपका अभी पता चला अयोध्या से, पहले नहीं पता था, पहले नहीं पता था अयोध्या से, अभी पता चला क्या है यार? एक ही कॉलेज में? अच्छा, एक ही क्लास में ही है, तब भी नहीं पता? कमाल है यार। अच्छा, ये अयोध्या तो बहुत अच्छा बन रहा है यार, एकदम डेली न्यूज़पेपर उसी जगह। मैं जनवरी में गया था वहाँ अयोध्या जी के दर्शन करने, बड़ा अच्छा मंदिर भव्य बन रहा था उस समय, पूरा स्पेस एकदम। तो जस्ट बैक, हम लोग हैंड डर्टी, तो मैं इसलिए आया वेल्थ मैनेजमेंट, बेसिकली हाउ यू हैंडल मनी, पैसे से पैसा कैसे कमाए, हाउ टू ग्रो दैट। बेसिकली आप जब बैंक में जाते हो तो अकाउंट ओपनिंग करते हो, आप लोगों को भी पता है पाव में पैसे डालते होंगे, आप खर्च कर देते होंगे, फिर डालते होंगे, फिर खर्च कर देते होंगे, ऐसे तो होता होगा। आप में से कितने लोगों ने ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन कोई ना कोई प्रोग्राम या किसी इवेंट को अटेंड किया है वेयर यू हैव पार्टिसिपेटेड? एक्सपो, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट इन द सेंस देखने गए थे कि पार्टिसिपेंट थे? वेरी गुड। कहाँ पे? कॉलेज में जो अभी हुआ था। और कितने लोगों ने पैसे अर्न किए? कहाँ पे? जॉब भी किया और बिजनेस भी किया है। कहाँ पे? अपनी तरफ हमीरपुर में। क्या? एक तो कैमरे का जॉब किया था, हाँ। इवेंट मैनेजमेंट भी किया हुआ है। हाँ। और यहाँ पर आया था तब अभी जॉब स्टार्ट की थी 2 महीने की। वेरी गुड। मोटो जीपी अटेंड किया, फैंटास्टिक। और दिस साइड आप लोग शूटिंग करते हो तो कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह में नहीं जाते? नहीं, तो वायल आई एम, हाँ, कोचिंग दिया, वेरी गुड। और So as a freelancer, I earn. क्या? I'm a graphic designer. ग्राफिक डिजाइनिंग का किया। आप बीबीए स्टूडेंट हो? बीजीएम से? BBA. बीबीए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी थोड़े दिन पहले ना, ये ऑटो एक्सपो सेंटर है ना, यहाँ पे आया था। एक्सपो सेंटर में देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ह्यूज। अगर आई विल टेल यू, जब मैं कॉलेज में था तो उस जमाने में मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स को चिंता होती, जॉब कैसे करेंगे, बिजनेस कैसे करेंगे, पता नहीं, मेरे को ऐसी कभी चिंता हुई नहीं। और आज भी मैं जनरली पीपल लाइक हु आर यंग क्राउड लाइक यू, जिन बच्चों से मिलता हूँ, ये टेंशन रहती है जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे, कोई चिंता ही नहीं। बहुत देते ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ह्यूज। आप बिलीव नहीं करोगे, अपॉर्चुनिटीज ह्यूज। आपके करने की इच्छा होनी चाहिए, विल होना चाहिए। देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू वर्क। कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, देयर आर सो मेनी जॉब्स व्हिच आर अवेलेबल, देयर आर सो मेनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर अवेलेबल। तो आइडली जब मैं एक्सपो सेंटर में आया, यू वोंट बिलीव, वहाँ पे जितने भी सेंटर पे, तो ऑलमोस्ट 14 नवंबर से 27 नवंबर तक दिल्ली के ट्रेड फेयर लगता है। कितने लोगों को पता है कहाँ लगता है? फैंटास्टिक। इस साल भी लगा। When I was at that point of time, ऑटो एक्सपो में पर डे कितना मिलता था पता है? Any guess? पर डे ऑटो एक्सपो में इफ यू आर अ पर्सन हु हैज पार्टिसिपेटेड, कितने पैसे मिलते थे? 500। Any other guess? Per day. No, can be a right guess. Any idea? Fantastic. Auto Expo में every person used to get 2,500 to 3,000 rupees per day. आने जाने का खर्चा अलग, फूड का खर्चा अलग। Same goes with trade fair. ऑटो एक्सपो में ऐसा होता था, एक्सपो सेंटर जो 14 नवंबर से 27 लगता था, आपने कितने लोगों ने ट्राई किया है एक्सपो सेंटर में? मिला? मैं जब गया था यहाँ पे, यू गेट इन टच विथ इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आई सॉ लॉट मेनी, मतलब एंट्रेंस में बच्चे वे दिखा रहे थे, एंट्रेंस में रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, स्टॉल्स में सब बच्चे थे। जनरली व्हाट आई चेक विद देम, दे वर फ्रॉम मंगलमा इंस्टीट्यूट से काफ़ी सारे बच्चे थे वहाँ पे, कुछ बच्चे यूनाइटेड से थे वहाँ पे। आई डोंट नो आप लोगों में से कोई IMT से वहाँ गया था कि नहीं। एंड दे आर इनफ ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। सी आइडिया इज क्वाइट नेचुरल। पैसे तो एक मिलते ही हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, हाउ टू रियली इंटरेक्ट, अंडरस्टैंड कैसे वहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो। सो आइडली इफ यू हैव ट्राइड इट, ओके, इफ नॉट, गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। वहाँ पे रजिस्टर, मतलब बेसिस जो स्कूल टाइमिंग्स, कॉलेज टाइमिंग्स, आप करो रजिस्टर, वहाँ एक्सपोजर बहुत मिलता है।
मतलब सैटरडे संडे को जनरली प्रोग्राम्स होते हैं। देखो एजुकेशन बुकिश नॉलेज बिल्कुल ज़रूरी है बिकॉज दैट इट इज़, लेकिन इसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जनरली, जैसे आप लोग सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में हो गए, फर्स्ट ईयर में 11th 12th के बच्चे जो अगर आज यूएस में जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, बुक्स के अलावा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। वहाँ आप किसी बच्चे से बात करोगे, आपकी फैमिली में कुछ बच्चे अगर होंगे, दे टॉक बिजनेस मनी, आप किस लिए आप पढ़ने आए हो? मनी। करेक्ट, मनी के लिए आए हो, तो मनी का पल्स लेके देखो। मनी शुड नॉट डेविएट यू फ्रॉम द टॉपिक बट यू शुड लर्न। नेक्स्ट, फिर वहाँ से मैंने लाइन चेंज की, मैं HDFC बैंक को बोला कि गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द डिपार्टमेंट, आई एम गोइंग बैक टू द ओल्ड पॉइंट। उन्होंने बोला नहीं देंगे। मैंने कहा सर क्यों नहीं दोगे? बोला नंबर्स इतने अचीव हो रहे हैं, टारगेट इतना अचीव हो रहा है, तू छोड़ जाएगा तो काम कैसे होगा? मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, छुट्टी दे दो। अरे छुट्टी कैसे दे सकते हैं, तो काम कैसे होगा? ये कॉर्पोरेट में बड़ा मुश्किल वाला काम है। काम करो तो छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं काम करो तेरे बिना काम नहीं चलता, ऐसे होता है ना। तो मैंने बोला देन आई लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, आई मूव टू डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इंडियन बैंक से मल्टीनेशनल बैंक में एक अपॉर्चुनिटी मिली, फ्रॉम देयर आई मूव्ड, और वहाँ पे फिर स्टार्टेड लर्निंग कि हाउ टू हैंडल मनी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड। कितने लोगों को पता है म्यूचुअल फंड क्या होता है? कितने लोग इन्वेस्ट करते हो? हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, पता है? किया है काम नहीं किया है बस पता है, गुड। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट्स, ये सब कोई चीज़ नई तो नहीं सुनने में आ रही, नया तो नहीं लग रहा। हर डिपार्टमेंट में दे आर ह्यूज नंबर ऑफ, यू वोंट बिलीव टेलीकॉम और बैंकिंग इंडस्ट्री में सर भी करेंगे, इफ यू करेक्ट मी रॉन्ग, मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स हैं। आपका विल होना चाहिए काम करने का। यू वोंट बिलीव, मैं बार बार कह रहा हूँ, आई कैन प्लेस 100 स्टूडेंट्स इन 10 days इन माई कंपनी ऑल्सो एंड इन द फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत ईजी है, आपका विल होना चाहिए। then I moved to ICICI प्राइवेट बैंकिंग। ICICI प्राइवेट बैंकिंग का वो लेवल होता है कि आपका एक क्लाइंट लेवल बहुत चेंज हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट हैंडलिंग क्लाइंट्स ऑल अक्रॉस, जिनको आप हुज एंड हुज ऑफ द सोसाइटी कहते हो। हुज एंड द हुज ऑफ सोसाइटी पता है क्या होता है? जानी मानी हस्तियाँ जिनको आप जानते हो, चर्चित, अंबानीस, अदानीस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, फिल्म हस्तियाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो वहाँ से चेंज किया। उसके बाद आई मूव टू सिटी बैंक। सिटी बैंक में आए, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली ग्लोबली ट्रैवल करने की, क्लाइंट्स हैंडल करते थे। स्टिल टुडे आई ट्रैवल ऑलमोस्ट, लास्ट 2 months से नहीं ट्रैवल कर रहा, नहीं तो आई ट्रैवल ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर आउटसाइड इंडिया टू क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, टू मैनेज देयर मनी। आई गो टू लंडन, आई गो टू US, आई गो टू सिंगापुर, दुबई, इज द रेगुलर फीचर। तो सिटी बैंक ज्वाइन कर लिया। मैं किसी इवेंट में गया था सेंट पीटर्सबर्ग। किसको पता है सेंट पीटर्सबर्ग? सेंट पीटर्सबर्ग नहीं पता? मॉस्को पता है? किसको पता है मॉस्को? किसको नहीं पता मॉस्को? मॉस्को कहाँ है? मॉस्को इज इन रशिया। तो सेंट पीटर्सबर्ग इज ब्यूटीफुल सिटी इन रशिया। तो मैं वहाँ गया। वहाँ से जब लौट के आया, मैंने बताया मनिया मारवाड़ी, बिजनेस करना, अब तो बिजनेस करना हो गया, सब कुछ डिसाइड हो गया। रेजिग्नेशन दे दिया, घर से बात कर ली, रेजिग्नेशन दे दिया, सारी तैयारी वैयारी कर ली, रेजिग्नेशन दे दिया। 6 दिन बचे थे। पापा कहते क्या बात कर रहा है, वो 22 तारीख को तनख्वाह कहाँ से आएगी, घर कैसे चलाएगा, 2 बच्चे हैं हम लोग, कौन से चलेगा? मैंने कहा पापा क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, कैसे होगा, ऐसे तो बुरा हो जाएगा। कंपनी फॉर्म हो गई, दिस वॉज 2017। तो फ्रॉम अ एम्प्लॉय टू आई टर्न इनटू एन एम्प्लॉयर। मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि एवरीबडी सिटिंग हियर, आप में वो अपॉर्चुनिटी, काबिलियत, जोश, जज्बा, स्पिरिट, एक्शन है। मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट था। इनफैक्ट आई हैव स्टडीड माई MBA फ्रॉम अ नेक्स्ट डोर कॉलेज दैट यू आर स्टडिंग। मैंने किया था IIMT ग्रेटर नोएडा से, ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। उस समय MBA प्रोग्राम वहाँ रन होता था, जो तुगलपुर के बगल में और आपका जगत फार्म के सामने है, APJ के बगल में। आई डिड माई MBA फ्रॉम दैट कॉलेज इन 2003। यहाँ से निकले, उसके बाद समर ट्रेनिंग की थी, और उसके बाद पेप्सिको अनदर कंपनी थी, तो वहाँ से स्टार्ट किया। 6th डे बचा हुआ, तो 6 दिन बचे हुए रेजिग्नेशन के लास्ट से। पापा ने बोला नहीं। मैंने कहा अब कैसे होगा, क्लाइंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया,
बिजनेस करने का पूरा इच्छा है तो करना है, ठीक है भाई। पेरेंट्स के साथ रहता हूँ तो आई कैन नॉट से नो टू देम। मेरे भी 2 बच्चे हैं, 2 सन्स, दे हैव इन क्लास 8 एंड क्लास 9। एक है DPS नोएडा में, एक है DPS आकेपुरम में, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो आई नाउ व्हाट आई डिड कि उस समय 2017 to 2019 आई यूज टू वर्क डबल शिफ्ट, 7:30 to 9 o'clock अपना बिजनेस, 9 to 6 सिटी बैंक, 6 to 11 अपना काम, 18 आवर्स ऑफ वर्किंग। कोई भी क्लाइंट मिक्सअप ना हो, कहीं पे इंटीग्रिटी इशू ना आए। इंटीग्रिटी समझ में आता है? इंटीग्रिटी यस नो नहीं, ईमानदारी। पैसा संभाल रहे हो ना किसी का, तो यू हैव टू बी वेरी लॉयल। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आपके पापा ने पैसा दिया, मम्मी ने पैसा दिया खर्च करने के लिए, क्लाइंट ने पैसा दिया, उड़ना नहीं चाहिए, संभाल के रखना है। तो दैट वाज द टाइम, 18 आवर्स ऑफ वर्किंग, बॉडी ने जवाब दे दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, 18 आवर्स ऑफ वर्किंग और दिल्ली जैसी जगह में आपको ट्रैवल करना पड़े, इतना पोल्यूशन, इतना ट्रैफिक। तो ऑलमोस्ट 2018 एंड आई डिसाइडेड, थैंक यू, पापा से परमिशन ली, क्योंकि एटलीस्ट थैंक्स टू गॉड इनकम लेवल उतना पहुंच चुका था व्हाट आई वाज अर्निंग इन अ सैलरी। ही सेड ओके, कंपनी इस्टेब्लिश कर चुकी थी, मेरी वाइफ हैंडल कर रही थी फ्रंट एंड कंपनी, और मैं अपना जॉब और ये दोनों चीज़ बैक साइड में कर रहा था। ऑफिशियली तो कर नहीं सकते, इट्स नॉट अलाउड। 2019 I said thank you, thanks to my star, thanks to God. Citibank said we are exiting India. Citibank, कितने लोग Citibank पता है? How many of you know Citibank? Citibank, आप लोग कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हो? कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो? कौन सा? और आप लोग तो BHA में स्टूडेंट न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते? कौन सा? टाइम्स नाउ, अमर उजाला। Start reading some good English newspaper. Start reading some good English newspaper for yourself. Content writing आप लोग करना चाह रहे हो, you wanted to be a part of the company या shooting, पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ मीडिया के बच्चे हो ना आप लोग, तो मीडिया के बच्चे पेपर ही नहीं पढ़ते हो। अमर उजाला पढ़ो, रीड सम गुड न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। मिंट भी रखा होता है, अमर उजाला भी रखा होता है, उनकी चॉइस क्या पढ़ना चाहते हैं। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ रीड सब गुड न्यूज़पेपर, पता चले दुनिया में क्या चल रही। आइडली आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, अच्छी जगह पे हो, अपने घर छोड़ के आप लोग इतनी दूर पढ़ाई करने आए हो, टेक सम एक्सपोजर। देखो वही डिफरेंस क्रिएट करता है और एक परफॉर्मर और एक नॉन परफॉर्मर में। आप अगर 3 साल 4 साल 5 साल बुकिश नॉलेज लेके कहीं कॉर्पोरेट में या कहीं काम करने जाओगे अपना, तो प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपीरियंस वो पेपर ही देता है। वो पेपर ही बहुत हेल्प करता है टू डू समथिंग गुड फॉर यू। देखो मेरे को लेक्चर देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं आऊँगा, मेरे जैसे कई लोग आएंगे, लेक्चर देंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको न्यूज़पेपर देगा। तो स्टार्ट रीडिंग सम आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, डेली कुछ पढ़ो। मैंने बोला अंबानी कितने लोग जानते हो? फैंटास्टिक। मैंने कहा अदानी कितने लोग जानते हो? मैंने कहा अमिताभ बच्चन कितने लोग जानते हो? सब जानते हो। मैंने कहा सलीना जेटली कितने लोग जानते हो? सलीना जेटली को नहीं जानते। जैकलिन फर्नांडिस सब जानते हो। रवीना टंडन सब जानते हो। वेरी गुड। मार्क जुकरबर्ग सब जानते हो। तो दीज आर सम बिग नेम्स जो सब जानते हो। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। तुम्हें पता है अदानी कंपनी की हालत खराब हो गई थी, क्यों? करेक्ट। किसने बढ़ा ये सब? किसने बढ़ा था? तो सारी कॉमन न्यूज़ आप लोग पढ़ रहे हो। स्टार्ट रीडिंग। जैसे आपको बोला कि आप लोग क्या, अमर उजाला भी होता है, दैनिक जागरण भी होता है, मिंट भी होता है। आपका इंटरेस्ट होता है क्या पढ़ते हो, ठीक है, उसको 2 घंटा पढ़ते हो अमर उजाला को। एटलीस्ट स्टार्ट रीडिंग दिस न्यूज़पेपर। 2 फायदे होंगे, नॉलेज बढ़ेगी, इंग्लिश इंप्रूव होगी। इंग्लिश इंप्रूव होगी। इन माई ऑफिस जितने मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, देयर आर इंस्ट्रक्शन, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ोगे। आपको सब्सक्रिप्शन करवाना है, कंपनी से करवा लो, आप डेली पढ़ोगे। दैट्स अ मैंडेट। मेरे ही बच्चे आप जैसे जॉब करने आए, व्हेन दे स्टार्टेड केम इनटू ऑफिस, आप सेम न्यूज़पेपर जो पढ़ते थे, यू विल फाइंड अ डिफरेंस। पढ़ के देखना स्टार्ट करो, यू विल स्टार्ट टू सी अ डिफरेंस। क्योंकि या तो बुकिश नॉलेज लो, वो तो आप ही चॉइस है। मम्मी पापा से पैसे लेना, पढ़ाई करना, 3 साल की पढ़ाई ख़त्म होगी, फिर 2 साल की पढ़ाई करो, फिर बिजनेस फैमिली से हो या जॉब फैमिली से हो, थोड़ा आगे बढ़ोगे, सेटल करने के लिए मामा बोलेंगे शादी कर लो, बोलेंगे ना, हर किसी को बोलेंगे।
तो आप शादी कर लोगे तो एक डायरेक्शन में सेटल हो जाओगे, आपके साथ जो आएगा वो सेटल होने की कोशिश करेगा। इफ़ यू वांट टू रियली ग्रो, रीड समथिंग गुड। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी जर्नी फ्रॉम एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इज़ ओनली बिकॉज ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है कि क्या करना चाहिए। अब जो हम बात कर रहे हैं स्मॉल मीडियम माइक्रो, ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई, तो माई कंपनी इज इन टोटली इनटू अ वेल्थ मैनेजमेंट। हम वेल्थ मैनेजमेंट में हाउ टू हैंडल मनी, आई हैव एम्प्लॉयज़ इन माई टीम हु आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ ओनर्स फॉर द कंपनी। मैं अपनी कंपनी में जो भी लोग आते हैं, आई ट्राई टू टीच देम, ट्रेन देम कि डेवलप योर सेल्फ सो दैट यू कैन ऑल्सो बिकम एन एम्प्लॉयर इन कमिंग डेज, अगर आप चाहते हो। नो डाउट हर कोई एम्प्लॉयर नहीं बन सकता। रिस्क टेकिंग एपिटाइट जिसके अंदर होती है वही एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बन सकता है। करेक्ट। अब आपने बोला आपने अपने बिजनेस ज्वाइन करना है पापा का, पश्मीना का। आप दो तरीका है। जैसे आई टेल यू वन मोर थिंग, मेरी फैमिली में जगह एक आजमगढ़, कितने लोगों ने नाम सुना आजमगढ़ का? आजमगढ़ में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, सरसों की मिल है, स्कूल्स हैं। उनके बच्चे पढ़ाई किए, नाइदर ऑफ देम वांटेड टू गो टू बिजनेस। क्यों? आज के दिन में राशन के गल्ले पे कौन बैठना चाहेगा? राशन के गल्ले पे कौन बैठना चाहेगा? राशन गल्ला पता है? कोई बैठना चाहेगा इतना पढ़ने के बाद? नहीं। दूसरा वे है कि इसको इनोवेटिव मल्टी स्टोर टाइप बना दो, जैसे कि रिलायंस के या बिग बाजार के होते हैं, फिर मैनेज करना चाहोगे? करेक्ट। दैट्स ओनली अ डिफरेंस जो आप बिजनेस में क्रिएट कर सकते हो। तो दैट इज़ ओनली थिंग। ऐसा नहीं है, बल्कि स्मॉल टाउन्स में कहूँगा पैसे ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि आप क्या करना चाहते हो। मार्केट में अपॉर्चुनिटी इमेंस है। मैं अगर अपने फील्ड की बात करूं, म्यूचुअल फंड, आपने बोला जानते हो, कुछ ने बोला नहीं जानते हो। हेल्थ इंश्योरेंस, आपने कुछ बोला जानते हो, कुछ बोलते हो नहीं जानते हो। लाइफ इंश्योरेंस, मेरे पास अपने ऑफिस में हर वर्टिकल में आई हैव मल्टीपल वैकेंसीज अवेलेबल, मल्टीपल वैकेंसीज अवेलेबल इफ पीपल आर रेडी टू लर्न करने की। यार ऑप्शन अपॉर्चुनिटी तो आप ही डिसाइड करोगे ना। बुक पढ़ो, मार्क्स लॉ 90%, वन वे दैट शुड बी देयर। प्रैक्टिकल नॉलेज, बहुत एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मार्केट में प्रैक्टिकली जाके नहीं देखोगे तो मम्मी पापा कितने दिन तक हेल्प करेंगे? चलिए बात जो मैं बोल रहा हूँ टीचर्स भी बोलते होंगे, आपके पापा मम्मी भी बोलते होंगे, ठीक है। आपके बगल में एक्सपो सेंटर है, ऑटो एक्सपो यहीं लगता है, एक्सपो सेंटर, गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ, टेक एन एक्सपोजर। अरे पैसे भी मिलते हैं, एक्सपीरियंस भी मिलता है, एक्सपीरियंस मिलेगा। आई थिंक कॉलेज डज नॉट से नो फॉर दिस। आइडली गो एंड टेक एक्सपोजर। एक्सपो सेंटर, हम लोग तो ट्रेड फेयर में 14 से 27 नवंबर जब लगता था, कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में जाके रजिस्ट्रेशन करा दिया था यार। 1000 रुपये 97 98 में मिलते थे। इट वॉज अ बैड थिंग। पर डे 1000 रुपये, इट वॉज अ बिग थिंग। आज भी समथिंग। तो पैसे तो मिलेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, टू मीट पीपल, टू इंटरेक्ट, टू गेट ड्रेस, सब कुछ मिलता है। एवरीथिंग इज पेड, सब कुछ पेड है। तो गो योरसेल्फ, रजिस्टर योरसेल्फ, लर्न समथिंग, न्यूज़पेपर पढ़ो। अब देखो यहाँ पे आप लोग करीब 40 लोग बैठे हो, कुछ लोगों को इंटरेक्शन इंटरेस्टिंग लग रहा हो, कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा हो, दैट्स अ फैक्ट, दैट्स नॉर्मल। जो ग्रो करना चाहते होगे, हो सकता है कुछ लोग इसके बाद बात करना चाहो, हो सकता है कुछ करो। थैंक यू, सेशन खत्म हुआ, 200 रूम की सीट थी, 50 लोग आके बैठे, आए और चले गए। भीड़ में तो यार हर कोई अकेला है। अब आप अपनी मूवी बनाना चाहते हो कि मूवी देखना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। अगर अपनी मूवी बनाना चाहते हो तो यू नीड टू चेंज, बी प्रैक्टिकल, बुकिश नॉलेज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। आप लोगों ने बोला कंटेंट राइटिंग करना है, कंटेंट राइटिंग अपना काम हो सकता है, यू आर अवेयर ऑफ कितनी अपॉर्चुनिटी है कंटेंट राइटिंग के। माई सिस्टर हैज अ कंपनी, दे आर इनटू कंटेंट राइटिंग, दे लुक फॉर कंटेंट राइटर्स, फ्रीलांसर, ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ह्यूज। कंटेंट राइटर की शूटिंग के लिए शॉर्ट क्लिप्स, आप लोग अपने फ़ोन पे रील्स, तो शॉर्ट क्लिप्स कैसे बनती हैं, कंटेंट्स लिखे होते कैसे बनते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप ढूंढने की कोशिश करो जो आप चीज़ें दिन भर, आपके हर किसी का स्मार्टफोन होगा, हर किसी के पास स्मार्टफोन है। आप लोग फेसबुक हर कोई लॉग्ड इन होगा, इंस्टाग्राम हर कोई लॉग्ड इन होगा, वहाँ कंटेंट कैसे बन रहे हैं, वीडियोस कैसे बन रही हैं, रील्स कैसे बन रही हैं, दे आर प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग इट, अपने आप नहीं बन रही। दैट्स अ बिजनेस पीपल आर रनिंग। छोटी कंपनी, मतलब मैं ऑफिस जहाँ उसके बगल में ऑफिस है, ही हैज़ गॉट 10 एम्प्लॉइज, हिज एज इज़ ओनली 23। दैट डे आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है महाराज अग्रसेन,
फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, मैंने कहा क्या करें, बोले ऐड कंपनी मेरी, आई गॉट 42 एम्प्लॉइज, ऐड कंपनी 42 एम्प्लॉइज देर इनटू कंटेंट राइटिंग, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मैंने बिजनेस होगा, फादर करना, फादर इज इनटू जॉब, अपने आप स्टार्ट किया। कैसे एक्सपोजर आपके पास भी, मैं भी ग्रेटर नोएडा ही आता था, दिल्ली नोएडा से, आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, कुछ लोग घर से आते होगे, कुछ लोग कॉलेज में रह रहे होगे, देन सी अराउंड जहाँ पे आप बैठे हो तो हब है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का, हब है, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो कंपनी सडनली आपको जॉब नहीं देगी, सडनली से आएगी कंपनी, प्लेसमेंट कराएगी, जॉब, या तो ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले जाओगे, बुकिश नॉलेज लेने चले जाओगे, या इंटर्नशिप। तुम्हें से कितने लोग इंटर्नशिप करना चाहते हो, किस तरह की इंटर्नशिप करना चाहते हो? प्रोडक्शन और रिसर्च। क्या कंटेंट राइटिंग, कैसे आएगा नॉलेज? बुक्स वगैरह। नहीं आएगा। रीड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जब तक नहीं पढ़ोगे कहाँ से आएगा? बुक में कितना कंटेंट आएगा? उस बुक को आप भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, कैसे आएगी? दीज आर सम वर्ड, प्रैक्टिकल नॉलेज बुक, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। हाँ जी मैम, आप क्या करना चाहते हो? क्या? इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, जस्ट आस्किंग क्या? देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, व्हाट आई फील, आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, आप लोग जर्नलिज्म स्टूडेंट हो, कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी आप लोग यूज़ कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है, प्रोडक्शन हाउस, कंटेंट राइटिंग, प्रोडक्शन हाउस, कंटेंट राइटिंग। होता क्या, कभी पढ़ के देखा है? पढ़ के देखा है? कंटेंट का नॉलेज कहाँ से आएगा? बुक से थोड़ी आएगा, वो तो कंटेंट आप भी पढ़ रहे हो, सब कोई पढ़ रहा है, वो कंटेंट, बुक्स का कंटेंट लिखने के लिए देयर इज़ अ जॉब, यू नो। आप लोग जो बुक्स पढ़ रहे हो, आप लोगों ने स्कूल में 9, 10, 11, 12 के ग्रेजुएशन के लिए, स्कूलिंग के लिए जो पढ़ाई की, उस कंटेंट राइटिंग के लिए पीपल आर गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उस कंटेंट को लिखने के लिए। लेकिन आपको कंटेंट तो देखो नया, आप रील देखते हो, कितने लोग रील देखते हो? सेम रील कितनी बार देख सकते हो? 2, 3, उसके बाद बस। तो आपका मटेरियल अगर सेम होगा तो कौन पढ़ना चाहेगा? आइडिया कहाँ से आएगा? आपका डिफरेंट, अगर आपको डिफरेंट चीज़ें पसंद है तो आपको डिफरेंट चीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ना। आप प्रोडक्शन हाउस में आते हो, आपने कभी एक्सप्लोर किया प्रोडक्शन हाउस में आते हो कहाँ जा सकते हो? कहाँ पे? कैमरा वगैरह एंड कहाँ पे? वीडियोग्राफी। जहाँ आप बैठे हो इससे सिर्फ 25 किलोमीटर दूर बहुत बड़ा एक सेंटर है, कभी गए वहाँ पे? नहीं। क्यों? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वो नहीं आएंगे चल के। फिल्म सिटी जाओ, इतना बड़ा स्टूडियो, जी स्टूडियो, मावा स्टूडियो भरा पड़ा है। गो एंड गिव योर सीवी, दे लुक फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू। आप विश्वास करो, आपको दुनिया ढूंढ रही है, आप ढूंढ रहे, वो यहाँ पे आए, वो कह रहे हैं वो यहाँ पे आए। कैट एंड द माउस स्टोरी, कौन पहले आए? ऐसी है ना, एग और चिकन, लोग कौन पहले आए? गो ऑल आउट, सही में करना चाह, सही में देखो बहुत कॉमन वर्ड्स है, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, शूटिंग करना चाहते हैं, यहाँ से निकल के जाके अपने सीवी का भी देख के आया है। 25 किलोमीटर्स है यहाँ पे हार्डली, वहाँ कम से कम 50 स्टूडियो है, 50। गो एंड गिव योर सीवी, वी वांट टू डू इट। पूछ के तो शर्माना इस बात का, मना कर देगा, मना कर दे, एक मना कर दे, दूसरा मना कर दे, तीसरा। गो एंड गिव योर सीवी। अगर प्रोडक्शन हाउस में काम कर, कंटेंट राइटिंग में आप काम करना चाह रहे हो, कभी धोचा है रील्स बनती कैसे हैं, कभी उसकी गहराई में गए हो? गए हो? फेसबुक पे इतनी क्लिपिंग्स आती हैं, इंस्टा पे इतनी क्लिपिंग्स आती हैं, इतने आते, कभी गए हो गहराई में? पीपल गेट पेड, यू नो, यूट्यूबर्स अगर आपने सुना हो, दे आर गेटिंग $1 लाख पर मंथ जस्ट फॉर यूट्यूब बैनर जो बनाते हैं। उनके ऊपर कितने फुटफॉल्स आ रहे हैं उसके। आई हैव अ फ्रेंड हुज डॉटर इज अ यूट्यूबर, शी इज 13 ईयर ओल्ड, शी स्टडीज इन क्लास 7th, शी अर्न्स $1 लाख पर मंथ, मैं उसका आपको नाम ही बताऊंगा, सर्च कर लेना। शी यूट्यूब से बना रही है, मतलब आइडली कंटेंट अगर आपको बनाना अपना भी तो कभी करके देखो। कभी कंटेंट देखने का, मैंने कभी यहाँ से निकल के जाते हो नोएडा स्टेडियम, दिल्ली सेक्टर 18 जाओ, 18 गए हो? यस सर। सेक्टर 18 में पार्किंग लॉट है, उसके बैक साइड में कभी चले जाना। देयर आर सो मेनी किड्स लाइक यू, अपना शूटिंग बना के इंस्टा यूट्यूब पे डाल रहे हैं। जाके देखो तो मल्टी लेवल पार्किंग के पास, मतलब एवरीडे आई पार्क का कार में देखता हूँ, कोई ना कोई 4-5 बच्चों का ग्रुप वहाँ पे कुछ कर रहा होता है। तो यहाँ आप लोग बैठोगे, कोई आपके पास नहीं आएगा, आओगे 3 महीने साल पढ़ाई करोगे, घर चले जाओगे।
जाओ स्टूडियो, यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आप जहाँ बैठे हुए। देखो आपकी बात ठीक है, आपको डायरेक्शन चाहिए, आई एम जस्ट टेलिंग, अगर आप लोग सही में इंटरेस्टेड हो, प्रोडक्शन हाउस बहुत सारे हैं, कम टू मी, आई विल शेयर अ कॉन्टैक्ट्स, जहाँ आप जाके आई विल गिव माई रेफरेंस वे यू कैन गो एंड मीट देम, गिव माई नेम एंड गो एंड मीट देम। लेकिन निकलना तो आपको पड़ेगा यहाँ से, कम आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ दिस प्लेस। आप बहुत बेसिक वर्ड्स यूज़ कर रहे हो खाली, समझे? कम आउट ऑफ इट, देयर आर लॉट मेनी प्लेसेज वेयर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, 3 साल पढ़ाई करना है, घर जाना है तो बात अलग है। आप दोनों, आप तो स्मार्ट हीरो लग रहे हो यार। क्या करने का प्रोग्राम है? वो क्या होता है? प्यार करना है? अच्छा, वो क्या होता है? सर किसी भी बड़े फिल्म स्टार है उसको बिजनेस को मतलब बैठ जाओ यार, खड़े हो, बैठो बैठो बैठो। सर किसी भी मतलब अच्छे मतलब रेप्यूटेड एग्जाम की ऑनलाइन वेबसाइट पे हैंडल करना। कितनी बार किया? किसका वेट कर रहे हो? कोई नहीं हेल्प करेगा, ना पापा आएंगे, ना मम्मी आएगी, ना सर आएंगे, खुद जाना पड़ेगा। करेक्ट? पिक्चर देखने खुद जाते हो? हाँ ना, टिकट लेने खुद ही जाते हो, तो भाई इसके लिए बाहर निकलो ना। आप अरे क्यों शर्मा रहे हो? आप पीछे बच्चों को दिख जाओगे यार। आपसे बोल रहा हूँ, आप क्या करना चाहते हो? रेडियो जॉकी। कितने रेडियो स्टूडियो में? रेडियो एफएम का नोएडा में ऑफिस है, पता है? कभी गए वहाँ? क्यों? सेक्टर 16। हाँ पता है। वहाँ गए हो? जाओ, जहाँ बैठे हो यहाँ अपॉर्चुनिटीज तो भरी, जाओ ना यार, जाके बोलो मेरे को देखना है अंदर से। कौन मना करेगा? बोले आप कौन? एक तो बोलेगा आप कौन? बोलेगा हम इस कॉलेज से आए, वी वांटेड टू पार्टिसिपेट। आप बिलीव करो, दे आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू, दे आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू। आप क्या करना चाहते हो? बैठे रहना। सर मैं लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर से रिलेटेड कुछ चाहिए एंड मार्केटिंग। इसको एक्सप्लोर किया कभी जाके? सर कल लाइक एक इंटर्नशिप की वहाँ लाइक जो इंटर्न्स ढूंढ रहे हैं वहाँ से कॉल आई थी, बट दिस साइड की लाइक आई नीड टू पे देम 2000 अगर उनके अंडर करना है एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग। अच्छा, उसके अलावा कोई ढूंढा? नहीं सर, कल ही हुआ था ये, एंड देन एज अ फ्रीलांसर आई एम वर्किंग ऑन फाइवर, इट्स अ वेबसाइट, एंड इसके बाद वही लाइक ऑनलाइन करना चाहती हूँ। देखो आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पे मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आप तरह के बच्चों को हायर करने के लिए रेडी हैं। आपको निकल के जाना पड़ेगा। अपना टाइम फेसबुक, गूगल में लगाने के साथ साथ ये लोकेशंस देखो कहाँ पे हैं, एंड गो एंड फाइंड इट आउट। आप क्या see anybody who has an interest in finance on any of the domains, please come to us, please come to me. I can really help you out if you are interested. अगर आपका interest है, whether you want to into research, you want to understand different segment, you want to work, learn, earn, come to me. Really come to me. There's huge opportunities available with me as an organization. मेरे फ्रेंड्स उस सेगमेंट में हैं, क्लाइंट्स उस सेगमेंट में। आप बढ़ के आओगे तो आई विल कम एंड हेल्प यू। ये तो मैं एक बार आया, लेक्चर देगा, दोबारा हो सकता है, थैंक्स टू सर दे विल कॉल मी, हो सकता है। आपको आना पड़ेगा। यू हैव और शर्माना किस लिए? यहाँ एडमिशन लेते समय शर्माए थे? नहीं, तो जो एडमिशन लेते शर्माए नहीं, तो उठ के निकलो, तो निकलो, थोड़ा उठना पड़ेगा। आप फाइनेंस एंड मार्केटिंग बच्चा बहुत बड़ा फील्ड है। क्या स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। पढ़ो जो आर्टिकल अच्छा लगे, बॉलीवुड, हॉलीवुड, स्पोर्ट्स, जो अच्छा लगे, स्टार्ट रीडिंग दैट। क्या किया उसके लिए? सोचो आप लोग। देखो मेरे को क्या लग रहा है, आप लोग उससे बुकिश वर्ड जरूर यूज कर रहे हो, तो एक्सप्लोर तो करो। यहाँ डिजिटल मार्केटिंग यू नो ऑलमोस्ट 1000 कंपनीज आर देयर इन नोएडा। गो एंड आस्क देम कि हमें करना है पार्टिसिपेट। यू वोंट बिलीव, एज अ कंपनी हम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ढूंढते हैं। आई एम रेडी टू हायर अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। कोई आए तो निकलो, यू गो आउट, यू विल फाइंड प्लेसेस। उसके बीच पहले कुछ नहीं करना। अभी स्टार्ट किया है कि ऑनलाइन डिजिटली मैं उसको क्या किया उसके लिए? वेबसाइट बन के रेडी है? सर अभी वर्किंग लेकिन अगर मैं कहूँगा कि फादर का पश्मीना का बिजनेस है, तो एटलीस्ट गो और कभी जाके एक्सप्लोर किया दिल्ली की मार्केट। सदर गए हो कभी? घूम के आए हो पूरा?
चप्पा चप्पा पता है? घूमो ना, जाके देख के आओ, जस्ट सी व्हाट इज देयर, व्हाट डिफरेंट दैट पीपल आर डूइंग। आहूजा सन्स का नाम सुना है? गए उसके आउटलेट्स पे? आप गए उसके आउटलेट पे, होके आए हो और देख के आओ सेंटर्स। उनको भी सेल किया है मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी। वेरी गुड सर। आपने कभी सोचा कि आहूजा सन्स को आप लोग बेचो तो अपना कुछ सेटअप लगा लें यहाँ पे? पापा का बिजनेस है, वही कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, गुड, लेकिन एक्सपेक्ट गिव समथिंग डिफरेंट ना। इन द मार्केटिंग और मार्केटिंग में तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट इसके लिए किया क्या? तो अभी तो यूट्यूब पे थोड़ा देखते हैं, वो कंटेंट देखते हैं क्या क्या करना है। तो फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, टाइम मिलता है जब कभी यूट्यूब पे देख लेते हैं। मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा, आप लोग सर्च करके जाके नोएडा में बहुत सी कंपनीज है, गो एंड गिव योर सीवी कि हम लोग काम करना चाहते हैं, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ईयर में क्या मना थोड़ी है, अगर टाइम मिल जाए तो कोई मना तो नहीं है। गो एंड ट्राई, गो एंड सी ऑल आउट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो एक्सपीरियंस नहीं मिला क्या होगा? आप ड्राइंग करना चाहते हो क्या? शेडिंग क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप सही कह रहे हो। कितनी बनाई है? कहाँ बैठ के बनाते हो? घर पे? अरे भाई मेट्रो स्टेशन में बैठ के बनाओ ना। गो एंड सी मेट्रो स्टेशन, बहुत से लोग आप लोग बैठ के होते हैं, रियली वोंट बिलीव, मेट्रो स्टेशन में पार्क में बैठ के बना रहे हो। यहाँ बैठ के थोड़ी बोलेगा, देखो मैं क्या, सी इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट आई थिंक आप लोग निकलना स्टार्ट करो, कम आउट ऑफ दिस प्लेस एंड गो ऑल आउट। सेक्टर 18 घूमने जाते हो ना, जाते हो, सब लोग जाते ही होगे, एक्सप्लोर से वो मार्केट में खा पी के तो आओ, लेकिन एटलीस्ट जाके देखो, वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। देयर आर ऑलमोस्ट 1000 कंपनीज सेक्टर 18, देयर आर 5000 इंडस्ट्रीज इन नोएडा, इन ग्रेटर नोएडा, मोर देन दैट, आई थिंक आई एम शॉर्ट ऑफ व्हाट आई सेड। तो ड्राइंग करना है तो घर में कहाँ रूम में बैठ के बनते हैं, फोल्ड करके बाहर निकलो, सही मतलब करना चाहिए। एक तो होता है मैंने क्वेश्चन पूछा, सबको आंसर जरूर नहीं पता, बोला नहीं पता होता क्या ना, मेरे साथ भी ऐसे होते, बाहर से बैठो को पूछने आता था क्या करना चाहते हो, पड़ोसी ने जो बोला उसका बुलाया जुलाया आंसर दो, उन्हें नहीं पता क्या करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है नहीं हो तो आंसर वाला ही आएगा, कोई बात नहीं। मार्केटिंग एंड सब अर्निंग्स, ऑनलाइन अर्निंग सब ऐसे कभी किया कुछ? थोड़ा बहुत क्या? स्टॉक्स खरीदने। ये मार्केटिंग बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, लेकिन फाइनेंस में किसी का इंटरेस्ट है, यू कैन राइट डाउन माई नंबर एंड इफ यू हैव एन इंटरेस्ट यू कैन रियली कम टू मी, आई कैन रियली गिव एन एक्सपोजर जहाँ आप सीख सको। अगर सीखने की इच्छा है तो आप मैम एंकर वो शिप वाला न्यूज़ एंकर, तो कभी ट्राई किया? कहाँ? अच्छा, और यहाँ हमारे और आप क्यों नहीं जाते आप लोग स्टूडियो में? ट्राई करो, हो सकता है अपॉर्चुनिटी में मिल जाए। गो ऑल आउट। मैंने बड़ी कोशिश की थी, नोएडा चैनल करके आता था, बड़े बार कोशिश किया, एंट्रेंस हमेशा हमेशा रिजेक्ट हुआ, तो पैसे बड़े अच्छे मिलते थे। बहुत कोशिश की थी आज से 20 साल पहले, नोएडा चैनल किया क्या करता था, संवाद सुना, संवाद जैसे नोएडा चैनल एक आया करता था, वहाँ पे नोएडा के लाइव वीडियोस और लाइव आया करते थे न्यूज़। सर एंकरिंग और एडिटिंग ट्राई किया कुछ? जी सर, क्या? यूट्यूब पे भी डालते सर, ब्लॉग भी बनाए और एडिटिंग भी करी। वेरी गुड, फैंटास्टिक। देखो थोड़ा आप लोग, मेरे को डिफरेंस क्या लग रहा है, आप थोड़ा सा डोंट टेक इट अदरवाइज, कुएं के मिट्टी से बाहर निकलो, गो टू इंस्टीट्यूट्स, गो टू सेंटर्स जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, उनके पास जाओ, मिलो, वो लोग आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे जहाँ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। देखो बंद कमरे में अपना नॉलेज चलता है, कमरे के बाहर जाओगे तो कुछ और सीखने को मिलेगा। तो मेरी जो जर्नी रही एज एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय ऐसे नहीं बनी है, आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स। तो वो अलाउ करेंगे सर, वहाँ जाएंगे तो वो अलाउ करेंगे सर? कौन? सर कंपनीज की। आपको कंपनीज की कॉलेज? सर कंपनी। अरे जाके सीवी देखो तो, ना ही तो बोलेगी, अभी तो ना ही है, ना ही है ना, तो ना से क्या डरना, ट्राई तो करो जाके, पहले नॉक तो करो। मैंने नॉक किया बिना सोचोगे क्या ना बोल देंगे, ना तो वैसे भी ना है। आई एम नॉट, मैं आपको सिर्फ नहीं बोल रहा, सभी के लिए बोल रहा हूँ, ना तो वैसे ही ना बैठे, यहाँ बैठ के तो ना ही है ना, तो जाके ट्राई करो। ना ही तो बोलेगा जैसे ज़्यादा, एक ना बोलेगा, दो ना बोलेगा, तीन ना बोलेगा। आप लोगों ने सबका नाम सुना है, मैकडोनल्ड बर्गर सुना है? किस एज में स्टार्ट किया था उसके ओनर ने? ही वाज 69। अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? कौन है? कितनी बार फेल हुए थे बिफोर ही बिकेम द प्रेसिडेंट?
अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? कितनी बार फेल हुआ वो बंदा? अरे कोशिश तो करो, ना ही तो बोलेंगे यार, क्या है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तो ना बोले 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार, क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी यहाँ ना ही है, ट्राई करो, बिल्कुल मिलने को मिलेगा आपको। हाँ जी सर। सर मल्टीपल बिजनेस। अरे मेरी जान, आप तो एकदम धीरू भाई अंबानी। क्या? सर एक तो मेरे पापा फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग से रिलेटेड उसे डिजिटलाइज करना है और उसी से बिजनेस स्टार्ट करना है सबसे पहले तो। और दूसरा मेरे यहाँ पर ना कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये ज़रूरत है कि वो आप लोग काम की चीज़ बता रहा हो? पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहते हैं, बट उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो जगह जगह पर पार्ट टाइम जॉब्स के लिए छोटे छोटे से स्टार्टअप्स करने हैं सर। वेरी गुड। कैसे? कैसे? जैसे कि अभी सर उसके बारे में मैं प्लान बना रहा हूँ। वेरी गुड। स्टार्टअप से एक चीज़ मेरे को आइडिया मिला। आप लोग देखो, सबके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे फरवरी मार्च में। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू सम काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट्स, वी जनरली इंगेज इंटर्न्स इन आवर कंपनी फॉर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। उसमें आपको लर्निंग भी होती है और अर्निंग भी होती है। इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन, डू कम ओवर। यहाँ बैठ के कोई एंटरटेन नहीं करेगा, कुछ कोई मिलेगा। 3 साल पढ़ाई कर लोगे, उसका 2 साल पढ़ाई और कर लोगे, वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। बातें बुरी लगेंगी मेरी बोलने हैं, लेट्स बी वेरी फेस द चैलेंज। पापा मम्मी से पैसे कब तक लोगे? स्टॉप इट यार, स्टॉप इट। अपना कुछ करो, बहुत पॉकेट मनी मिलती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा जहाँ बैठे हो आप जैसे बच्चे 1000 रुपये पर डे कमा सकते हैं। इवन 2 दिन भी काम करोगे वीक में ना, मोर देन इनफ। हम लोग की इच्छाएं तो होती हैं यूएस जाएँ, अमेरिका जाएँ, कनाडा जाएँ, रशिया जाएँ, दुबई जाएँ, सिंगापुर जाएँ। आपको पता है आपके एज के बच्चे वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं। मेरा नेफ्यू इज पास्टेड फ्रॉम अटलांटा जॉर्जिया टेक, अभी कन्वोकेशन हुआ 16 को। 3 साल वहाँ, 2.25 करोड़ रुपये की उसकी फ़ीस थी उसकी। उसके पेरेंट्स ने जो किया सो किया। ही यूज़ टू वर्क एवरी वीकेंड, रिसर्च स्कॉलर्स, $11 मिलते थे उसको पर आवर। पेट्रोल भरते हैं लोग। यहाँ तो शर्म आती है। मैं सेंट पीटर्सबर्ग गया, वहाँ बच्चे आपकी एज मैंने क्या करते हैं? माई फादर स्टेज इन सिंगापुर। वेरी गुड। आप क्या करते हो जी? व्हाट इज अर्निंग? $5 लाख। वेरी गुड। आप क्या करते हो? पिज़्ज़ा बेचते हैं। क्या हो रहा है? यहाँ बेच के देखो पिज़्ज़ा। यहाँ तो थोड़ा सोसाइटी अलाउ नहीं करती, लेकिन आपको जो अलाउ करती है एटलीस्ट करो। तो शर्म किस बात की काम है यार? शर्म करोगे तो यहीं बैठोगे, और जो शर्म नहीं करता है वो बाहर निकल जाएगा। काहे की शर्म? पड़ोसी बोलेगा क्या करता है, उससे बोले भाई तू क्या करता है? मैं तो पैसे कमाता हूँ, एक्सपीरियंस लेता हूँ। शर्म किस बात की? वो क्या सोचेगा? स्टॉप दैट। सोचेगा क्या? स्टॉप दैट। सोचना बंद करो। सही बता रहा हूँ, सोचना बंद करो। वो क्या सोचेगा? अरे जो सोचेगा उसको सोचने दो। जो सोचेगा ना वो सोचता ही रह जाएगा, आप कुछ करके निकल जाओगे। सबसे बड़ी चीज़ जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहा तो करके ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये होना चाहिए। और शर्माना बंद कर दो। जब जाते थे ना अमूल आइसक्रीम में, हर काम के नॉकिंग करने आते, अरे सोचते थे दुकान पे चढ़ें, चढ़े, अरे भगा देगा, अरे भगा देगा क्या होगा? लेकिन डोंट बिलीव, जब आप जाते हो लोग रेस्पेक्टफुली बुलाते हैं। आप लोग यहाँ स्टॉल लगा था, हमने भी लगाया था यहाँ पे एज अ कंपनी। सबके स्टॉल लगे, आपको जो इंटरेस्ट में आ रहा था जा रहे होंगे। होता क्या है, जनरली जो स्टॉल्स लगे होते हैं, अगर आप लोग कहीं जाओगे तो उसके पास जाने आने में थोड़ा संकोच होता है। हमारे इंटरेस्ट का है क्या, जाएँ तो क्या पूछेंगे, ऐसा होता है ना एज एन आउटसाइडर। तो एज अ कंपनी अगर हम सोचें अरे उसको अपने स्टॉल पे बुलाएं नहीं बुलाएं, ऐसा होता है, हमें भी शर्म आनी चाहिए। नहीं, शर्म किस बात की? एटलीस्ट ट्राई तो करो। ना सुनने की आदत डालो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? आफ्टर 100 नोज यू विल गेट अ 1 येस। ट्राई करो, बार बार करो, ट्राई करो। जो आपको कहता है ना, अगर आपका पड़ोसी बोलता है अरे क्या करने चला गया, अरे क्या बन, मुझे तो कुछ नहीं कर पा रहा, आप करके डिफरेंट कुछ कर लोगे। हाँ जी सर। एडिटिंग मेरा मतलब मेरे को क्या लग रहा है, आप लोग बहुत ना हर कोई बुकिश नॉलेज की वर्डिंग्स यूज़ कर रहा है कि जब आपने यहाँ आए एडिटिंग, एंकरिंग, कंटेंट राइटिंग, उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। सबसे पहले तो आज से पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। अमर उजाला पढ़ो, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। सम डिसेंट न्यूज़पेपर। देखो, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो लोकल न्यूज़ मिलेगी, इंग्लिश पढ़ोगे तो इंटरनेशनल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ पढ़ने को मिलेगी। रीड इट। कुछ दिन में क्या होगा, पहले समझ में नहीं आएगा, या हिंदी इंग्लिश फारसी लगेगी। पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा समझ में आना स्टार्ट होगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। यहाँ तो 20 साल की उम्र हो गई होगी सबके, 18-20 साल के हो गए ना। कोशिश करके यहाँ भी डायपर से इस लेवल तक पहुँचे ना सारे। तो ट्राई टू लर्न। सीखो, पढ़ने को मिलेगा। तो टीचर्स भी आप लोग को सिखाते हैं, वो भी एक्सपीरियंस से कहीं से आए हैं, करेक्ट। उन्होंने भी आपको एक बनाने की कोशिश की, लेकिन आप लोग लॉट में इतने बड़े हो तो अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो गो ऑल आउट। ठीक है। कभी ट्राई किया किसी जगह स्टूडियो जाके? करो, ट्राई करो। यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, नोएडा में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। नहीं तो 3 साल ऐसे ही निकल जाए, घर वापस चले जाओगे। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गो ऑल आउट।
ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टिकट नहीं मिलती तो ना ही तो बोलता ना काउंटर पे बंदा, हाँ ना बोल देगा ठीक, क्या फ़र्क पड़ता है। एनी क्वेश्चंस? मेरा नाम लिख दिया था। किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, डोंट हेजिटेट टू आस्क। सर आपने इंटर्नशिप के रेफरेंस के लिए बोला था ना? आप मेरा नंबर नोट कर लो एंड देन whoever that has who can get in touch with me 98 104 789 98104 78954। My name is Sandeep Goyal, नाम लिखा हुआ है। Anybody who is interested in finance line, आप 98 104 78954। Short term, long term projects. People who are able to do a nice project with along with us, we also give them PPO. PPO पता है? Yes, we give them offers also. We hire people and we give them offers also. We are in the expansion mode. We are open multiple offices in India and across all side, across the world. आप में से कोई अच्छा होगा हो सकता है we place you in some foreign locations in our company. तो try to come out of it. आप इंटरेस्ट शो करोगे तो नहीं दिक्कत, तो आप लोग इस सुनोगे मेरे जैसे कईयों को इंटरेस्ट है, कम डाउन, आपको जैसे कुछ चाहिए कम डाउन, आई कैन गिव यू अ रेफरेंस वे यू कैन गो। थोड़ा आपको बुलंद बनना पड़ेगा, एंकर बनना चाहते हो, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स है, जर्नलिज्म बरखा दत्त का नाम सुना आपने? सुना है? मूवी देखिए लक्ष्य, बरखा दत्त की शूटिंग थी, ऊपर चली गई थी, ऊपर इंद्र सिंह भगवान के पास। तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ न्यूज़ रिपोर्टर लाइक समबडी, यू हैव टू मतलब बी बोल्ड। आप लोग तो मतलब अगर जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो तो आई डोंट नो, मतलब बोल्डनेस शुड बी देयर ना। जर्नलिज्म के बच्चे बहुत बोल्ड होते हैं, किस बात का डर? कोई क्या कर लेगा? लोग मीडिया से डरते हैं, पता है कि नहीं? तो फिर तो कम ऑल आउट ऑफ इट। ऐसे होता है ना, डरते हैं ना मीडिया से, छाप दिया कुछ तो, वैसे ही हिम्मत है ना कुछ छाप दिया तो कम आउट ऑफ दिस फियर, कम आउट ऑफ दिस फियर। फियर ऑफ लूजिंग का डर मत रखो, फियर निकालोगे काम होगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चंस किसी को? और गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, एटलीस्ट कुछ कर जाओगे आप, एटलीस्ट इतनी बोल्डनेस तो है, यू हैव आस्क्ड। कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट रिगार्डिंग हाउ टू स्टार्टअप? क्या सर ने बहुत अच्छा कवर किया है मेरा, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अपॉर्चुनिटी बहुत है यार। ये कमरे में अगर ये फुल कमरा भी भरा हुआ हो ना, आई नीड ओनली 10 days टू प्लेस, ओनली 10 days, बट पीपल हु आर विलिंग come out of it. I have a line of finance, but my connections is throughout the industry, क्योंकि मैं लोगों के पैसे मैनेज करता हूँ, और पैसा सबसे क्लोज होता है, जिसका पैसा मैनेज करता हूँ उससे तो काफ़ी क्लोज होऊंगा, आई कैन रियली रेफर यू दैट पर्सन। लेकिन आप निकल के आओगे तब मैं आपको रेफर कर पाऊंगा, मैं ऐसे जस्ट लाइक दैट ओपन ऑफर्स रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा। कम आउट ऑफ इट, आई हैव टू सी योर विलिंगनेस। अगर मैं किसी के पास आपको भेजूँ, आई नीड टू सी योर विलिंगनेस, आप कितना विल करना चाहते हो, ठीक है ना? एनी अदर क्वेश्चंस? प्लीज फ्री टू आस्क जी। सर जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हम तुरंत के तुरंत ही एक साथ बिजनेस स्टार्ट करना सही होगा? जैसे कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के तुरंत बाद ही फिर से मैंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया। एस्टैब्लिश योरसेल्फ। एक साथ कितनी ग्रेजुएशंस कर रहे हो? सर एक ही। ठीक है ना, एक जगह पहले अपने आप को एस्टैब्लिश करो, कम से कम नींव मजबूत करो, तभी दूसरा घर बनाओ। पहले नींव बनाई, घर मजबूत नहीं किया तो गिरने की पूरी आशंका रहेगी। एक स्टैब्लिश करो, आगे बढ़ो, फिर गो फॉर नेक्स्ट। एक का एस्टैब्लिश करो। और आप जहाँ से आए हमीरपुर से, और आपके कह रहे हो फादर का फार्मिंग बिजनेस है, जहाँ पे आप लोगों को इंटर्नशिप देना चाहते हो, करना चाहते हो, पहले आपका बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन एक्सपोजर खुद भी लो। हाउ टू रियली, हो सकता है आप इतने सारे जो बच्चे बैठे हैं आपके साथ ग्रुप में मिलकर दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर टीम। थोड़ी नो हो सकता है। मैं जहाँ से कॉलेज से पास आउट हुआ, मेरे फ्रेंड्स अलग अलग कंपनीज़ में हैं, कोई जी न्यूज़ में हैं, कोई TV9 में हैं, कोई मीडिया का नाम इसलिए रहा, कोई दैनिक जागरण में है, कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है, कोई ग्रेट वाइट में है, कोई एंकर में है, तो दे आर डिफरेंट लोकेशंस। और कुछ आज भी बहुत बेसिक लेवल पे हैं, तो जो कुछ कर गए हैं वो आगे बढ़ गए हैं, नहीं तो आज भी नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं। तो जस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। आपका अगर फैमिली बिजनेस भी है, अपने लिए कुछ उसका अलग करने की सोचो, उसको ग्रो करने की सोचो। आप भी उस गद्दी पे जाके बैठ के वही 2 और 2 4 कर रहे हो तो क्या फायदा? फिर क्या डिफरेंस प्रोड्यूस किया आपने ना? मतलब आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज एग्जांपल पर से, बट ट्राई टू मेक 2:2 4 आप कर रहे हो, 2 + 2 22 होने चाहिए ना।
ऐसा कुछ आपका इनपुट होना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन, फैंटास्टिक। पर एक जगह नींव बनाओ फिर नेक्स्ट पे जाना, एकदम से हड़बड़ाओ मत, नहीं तो गिरने की, बिल्डिंग ढहने की बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी होती है। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी मैम, आपसे तो बात करना ही रह गया। क्या करोगे आप? कंटेंट राइटिंग। आप कई लोग बातें कर रहे हो, लेकिन आई फील आप लोग कंटेंट ही नहीं पढ़ रहे हो, तो राइटिंग करोगे कैसे? कंटेंट राइटिंग के लिए कंटेंट तो पढ़ना स्टार्ट करो। देखते हैं कितने मिनट्स और दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया के शॉर्टेज होना स्टार्ट होती है कॉलेज में, कितने लोग स्टार्ट करते हैं, पता चल जाएगा थोड़ी देर में या कल से ही। ऐसे देखो, मेरे लेक्चर से कोई फ़र्क नहीं, डोंट टेक इट एज अ लेक्चर। मैं एज अ फ्रेंड आपके पास आया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके गया। ये अपॉर्चुनिटी बहुत है, गवर्नमेंट इज़ डूइंग लॉट मेनी थिंग्स, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी बहुत है। वी हैव चोजन अ राइट गवर्नमेंट जो यहाँ पे इस समय इस्टेब्लिश्ड है। ऑल गुड बैड हम जो सुनते रहते हैं, 5 रुपये की न्यूज़पेपर पढ़ के बहुत सी चुस्कियाँ लेके अच्छी बुरी बातें कर देते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ रियली डन गॉट लॉट मेनी गुड थिंग्स। आप में से कितने लोग वोट दोगे? वोटिंग राइट किस किस के पास है? जिसके पास नहीं है, वोटिंग राइट स्टार्ट करो। आप 18 अबव, मेक योर इलेक्शन कार्ड, टेक अ वोटिंग राइट प्लीज़। एटलीस्ट आप जैसे यंगस्टर्स आगे बढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा, ठीक है ना? तो डू समथिंग गुड फॉर यू नेशन के लिए। देयर इज अ फोरम, यूथ फॉर नेशन, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन ये यूथ के लिए स्पेसिफिकली काम कर रही है। दैट्स बीन स्टार्टेड बाय मिस्टर GS मूर्ति, प्रोफेसर GS मूर्ति। ही इज़ ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। ही इज 87। मैं उनके साथ अभी थोड़े दिन पहले 15 अगस्त के दिन NIT हमीरपुर में था। वी वर इम्पार्टिंग लेक्चर इन NIT हमीरपुर। हमीरपुर में हमारा NIT है ना, हमीरपुर मंडी के नीचे। 15 अगस्त को मैं वहीं पे था, हम वहाँ लेक्चर इम्पार्ट कर रहे थे। तो वी आर जस्ट टेलिंग हाउ एंड व्हाट थिंग्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल फॉर यू। और देश आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। आप निकल के आओ इस कमरे से और इस कॉलेज से, बाहर निकल के आओ, बहुत कुछ है। ये तो बंद कमरों में, 4 दीवारी में तो फिर रह ही रहे। पता नहीं मैं आपके अंदर वो जाला आग भर पाया कि नहीं। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है सर, अगर हम अपना भी चैनल खोलना चाहें तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन लगता है क्या? बिल्कुल लगता है, पैसा चाहिए। और सर होटल अगर PG बनाना चाहे तो? PG को ऑर्गेनाइज कर, देखो 2 तरीका है, एक तो इलीगल और इलीगल है। इलीगल तरीके से तो आप जैसे नोएडा में रह रहे हो, बहुत से लोगों ने कमरे डाल रखे हो, काम कर रहे हैं। लीगल तरीके से गवर्नमेंट लाइसेंसेस चाहिए, बिना लाइसेंसेस के काम मुश्किल है। तो सर इनके लिए रजिस्ट्रेशन कौन करता है? किसके? अथॉरिटीज़। जिस अथॉरिटी में आप इस्टेब्लिश हो, अथॉरिटीज़ करती हैं रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल खोल सकते हैं आप। बहुत से लोग खोल के जनरली इन सबको भी सेटअप देते हैं, बना के OYO को दे देते हैं। ऐसी बहुत सी OYO टाइप बहुत सारे सेटअप्स हैं जो इस तरह PG रन कर। एक OYO का अलग से ग्रुप है जो PG रन करता है, आप लोगों को पता है? जी सर, मेरे PG के पीछे है एक PG, है ना। ऐसे बहुत सारे रेंटा विला ऐसे करके बहुत सारे नो ब्रोकर्स लोग भी PG रन्स करते हैं। आप बना के उनको भी दे सकते हो। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे? somebody raised hand among you। आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है, बट हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बट अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली, उसमें हमने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए रजिस्ट्रेशन करवाने में, तो अगर जो वो बिजनेस नहीं चला तो फिर हमारा रजिस्ट्रेशन तो बेकार हुआ ना। बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क। बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क। आपने कोई स्टैब्लिश किया, ऐसा कहता नहीं कि डे 1 पे रजिस्ट्रेशन कराओ। SME MSME ये कभी नहीं कहता डे 1। आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो चलती हैं उनके बेनिफिट्स के लिए, जो MSME के लिए हेल्पफुल हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं डे 1 में बिजनेस इस्टेब्लिश करते रजिस्ट्रेशन करा लो। पहले टेस्ट करो, चीज़ें आगे बढ़ने दो, फिर खर्चा करना स्टार्ट करो। कोई भी खर्चा करने के पहले उसको ट्राई तो करके देखो, टेस्ट करके देखो, सक्सेसफुल होता है रजिस्ट्रेशन स्टेज पे जाओ। जरूरी नहीं डे 1 में रजिस्ट्रेशन स्टेज पे चले जाओ। पहली कंपनी हो सकता है आप एक सक्सेसफुल कोई सेटअप लेके चल चुके हो फिर रजिस्ट्रेशन कराओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है देखो बिजनेस स्टैब्लिश करोगे तो कुछ चीज़ें चलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं चलेंगी। तभी मैंने कहा बिजनेसमैन इट इन्वॉल्व्स रिस्क। जो रिस्क ले लेता है वो एम्प्लॉयर बन जाता है, जो रिस्क नहीं ले पाता एम्प्लॉय बन के रह जाता है। मतलब नथिंग ऑफेंस बनी एनीबॉडी, लेकिन हाँ एम्प्लॉयर रिस्क लेता है तभी वो बनता है। और अरे छुपा क्यों रहे हो चेहरा? मैं क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा हूँ यार। ठीक है, तो एनीथिंग दैट यू रिक्वायर, बी इन टच, माइट वी सी अगेन and meet again. You can always contact me. Anybody who is interested in intern or a project, we in fact short-term run courses as a project. We also give trainings, no paid trainings. And somebody want to participate, come along with us, really want to work hard. We give them option to work for a short-term project, learn, earn and grow. That is an opportunity that we grow. आज भी किसी को पार्ट टाइम कुछ करने का इच्छा हो,
we can always there. I have along with me Nitin Sangal, he's from Tata AIA Life Insurance. We work with 87 principal companies. So Tata AIA is one of the association with which we also work. And हम बहुत से लोगों को अपॉइंट करते हैं where we give them opportunity to work short term, medium term, long term projects. पैसे कमाओ. Opportunity आपके पास बहुत है क्योंकि हम लोग जब मैं आज 22-23 साल में 87 कंपनीज के साथ काम करता हूँ, एक कंपनी के 87 कंपनीज के साथ काम करता हूँ, तो आप भी आगे बढ़ के आगे करना जो चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज पार्टिसिपेट. योर इंटरेस्ट विल डिसाइड टू व्हाट यू वांटेड टू डू इन लाइफ. ठीक है जी. So I think Sandeep Goyal sir has really enlightened us with so many insights, so many practical experiences on ground. And सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई कि you have to break your comfort zone, come out of your comfort zone, then only you can explore tremendous opportunities all across. Don't think that opportunities will come at you. You have to go and you have to explore, and consistently you have to explore, then you can definitely get results and you can meet your aspirations. Right? So with this, I'm very privileged to say a vote of thanks. So on behalf of the Startup Club of IMT College of Management, I am again very, very thankful to our guest, Sandeep Goyal sir and Nitin sir, who has spared their valuable time and interacted with one you all with a very, very practical experience, and I think he has triggered a lot of insights to explore the in-depth understanding of things. Just knowing words is not going to help. And his focus had been that you have to upskill and continue upgrading your skills which are required in the industry. Because just getting degree on completion of a graduation as a piece of paper is not going to help and place you to get your dream job, dream profile and dream company. So with this, I am again very, very thankful for the entire IMT College of Management, and I am thankful to the all support team from BJMC who has given a lot of support from IT. I am very thankful to all the students and your patience, and you had been interactive, you have asked certain questions. So with these kind of insights and understanding, continue exploring, read a lot as sir has indicated, and wherever you have some doubts, ask to the right person, refer to the right person, and tremendous opportunities are on the way. You have to catch and hold of that. But you have to break your comfort zone, that is the most important. So with this, I am closing this session. Thank you very much. Thank you all. Come. सारे बच्चे आ जाओ. हम तुझा मिलेगा. मोबाइल की सेटिंग इसको दे. जियो टैगिंग खींचेगा फोटो या फोन पे सही ले लेगा ना पक्का. अरे यार पहले की थोड़ी कर रहे हैं. फोन पहले मेरे पे आ पहले तो मैं लेट हो गया. बैठने हाथ में कैमरा पकड़ा दिया. सभी आ जाओ बेटा सभी. आ जाओ. एक बार गिरना है चलो.
थैंक यू सो मच। चलते हैं ना